بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہمارے ساتھ موسیٰ بھی ہیں۔ سلام کرو آپ بھی۔ السلام علیکم۔ پوچھو کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک، آپ کیسے ہیں آپ سب؟ یہ آج میرا موسیٰ بھی میرے ساتھ ہے، مائی نیفیو۔ تو ابھی آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی ایپیسوڈ نمبر 10۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نمبر نہیں 10 کیا 10 ایپیسوڈ ہے نا؟ مجھے لگتا ہے کل تو نمبر 9 بنائے ہوگی، چیپٹر 9 ہے نا؟ ہاں جی، کل چیپٹر 9 تھا۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، ایپیسوڈ کی طرف۔ اس کی رنگت یک لخت زرد پڑ گئی تھی، یوں جیسے کسی نے اچانک لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا۔ وہ ششتر سے کھڑی پھٹی پھٹی آنکھوں سے دروازے سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ایسا بس اس کے ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے پڑ چکے تھے اور دل کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نے سگریٹ کی طرح اپنے پیروں تلے مسل دیا ہو، جس کی اذیت اس کے پورے جسم و جان میں سرایت کر گئی اور ہونٹ محض کپ کپا کے رہ گئے۔ اسد بھائی آپ؟ یہ مختصر سا 3 لفظی جملہ زبان سے ادا کرنے میں پیچھے دانتوں پر سینہ آ گیا اور اس کی خوبصورت پیشانی اچھا حقیقتاً نرک آلود ہو گئی تھی۔ وہ اپنے قدموں پر مشکل کھڑی تھی، اس لیے لرزتے ہاتھوں کے سہارے کے لیے نگارش کا بازو تھام لیا۔ حالانکہ وہ بھی اپنے ساتھ کھڑے اس کرخت شکل آدمی کو دیکھ کر کافی گھبرائی ہوئی تھی، لیکن زری جیسی حالت تو پھر بھی نہیں تھی۔ البتہ جب زری نے اس آدمی کو اسد بھائی کہا تو نگارش پوری طرح چونک گئی۔ تب اسے پتہ چلا کہ وہ آدمی کوئی اور نہیں، عبداللہ اور زری کے بڑے بھائی اسد اللہ ہیں، جن کو بارہا تصویروں میں دیکھا تھا، لیکن آج جب اچانک انہیں حقیقت میں اپنے سامنے دیکھا تو پہچان نہیں پائی تھی، بلکہ ان کی ہائٹ اور ان کا حلیہ دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ تبھی تو وہ یکدم چیخ کر پیچھے ہٹی تھی۔ ان کے کرخت چہرے کو دیکھ ان کی بڑی بڑی مونچھیں اور بھی صفاق اور بے رحم بنا رہی تھی۔ اپنی موٹی موٹی سرخ خونخوار آنکھوں سے ان دونوں کو کافی گہرائی سے جائزہ لے رہے تھے۔ زری کے لیے ان کی خونخوار آنکھوں کے تیور نئے نہیں تھے، البتہ نگارش ضرور انجان تھی، اس لیے اندر سے سہمی ہوئی تھی کہ اس عیاش ملک اور سفید چمڑی والے لوگوں میں رہ رہ کر اپنوں کی شکل بھی بھول گئی ہے تمہیں؟ اتنے غور سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ بولے تو ان کی باروں پر دبنگ آواز پہ وہ دونوں ہی کام کے رہ گئے۔ یہ تو بہت ہی نہیں فنی بھائی، ویڈیو بنا رہے ہو آپ، لگتا ہے۔ ہاں جی، نہیں بھائی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بس وہ آپ کو اچانک دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا۔ زری نے بے ربط سے انداز میں تقریباً ہکلاتے ہوئے کہا اور دوپٹے کے پلو سے فوراً پیشانی سے پسینہ پہنچا تھا۔ السلام علیکم بھائی، آئیے آپ اندر آ جائیے۔ نگارش نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے متانت سے انہیں سلام کیا اور اندر آنے کے لیے راستہ دیا، کیونکہ وہ دونوں دروازے میں کھڑی تھی، لیکن ملک اسد اللہ نے نہ تو اس کے سلام کا جواب دیا، نہ ہی اپنے رسم و رواج اور روایت کے مطابق ان دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ نگارش کے اندر سے خفت ہوئی، لیکن یہ خفت اس نے ظاہر نہیں کی، کیونکہ سچویشن ہی کچھ ایسی تھی کہ کچھ کہنا سننا بیکار تھا۔ راستہ دو۔ انہوں نے ہنوز سامنے کھڑی زری کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا، فوراً پیچھے ہٹ گئی اور اس کے پیچھے ہٹتے ملک اسد اللہ مضبوط قدم اٹھاتے اندر آگے۔ نگارش نے حیرت سے دروازے سے باہر دیکھا، ان کے ساتھ کوئی سامان وغیرہ نہیں تھا، وہ خالی ہاتھ تھے اور اکیلے تھے۔ حیرت کی بات تھی، پاکستان سے بغیر سامان کے آئے تھے۔ بھابی؟ زری نے خوف کے مارے نگارش کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، جسے کبھی نہ چھوڑنے کا رہا تھا۔ ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہوگا، تم ان کے پاس چلو، میں عبداللہ کو فون کر کے بتاتی ہوں۔ نگارش نے زری کو تھپکی دے کر تسلی دی۔ نہیں بھابی، اب تو عبداللہ بھائی بھی کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ اب تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ زری کی آواز روحان سی ہوئی تھی۔ زری پلیز اتنی جلدی حوصلہ مت ہارا کرو، یہ دنیا اور دنیا میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہاں ہر بات، ہر کام، ہر سوچ ممکن ہے۔ یہ مت سوچو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اسد بھائی بھی انسان ہے، کوئی جن بھوت نہیں ہے جو چند منٹوں میں تمہیں اپنے پنجوں میں دبوچ کر پاکستان لے جائیں گے۔ تم پاکستان لے کر جانا ان کے لیے اتنا آسان ثابت نہیں ہوگا، بہت سے مراحل سے گزرنا ہوگا، اور سب سے بڑی بات کہ تمہارا پاسپورٹ عبداللہ کے پاس ہے، بغیر پاسپورٹ کے لے کر جائیں گے تو خود ان پر کیس بن جائے گا۔ اس لیے تم بے فکر ہو، تم محفوظ ہو، ان کے سامنے جاؤ، ریلیکس طریقے سے بات کرو، بوکھلانے کی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، معاملہ تم نہیں عبداللہ ہینڈل کریں گے، اس لیے تمہیں اس مسئلے میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی ڈرنے کی ضرورت ہے۔ نگارش نے اسے ذرا سا ڈانٹ کے سمجھا اور زری کو اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کی بات ماننا پڑی، لیکن اسد بھائی کے سامنے جانے کا حوصلہ اور ہمت پھر بھی نہیں ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری بھابی، میں ان کے سامنے نہیں جا سکتی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں۔ اس نے پھر بھی انکار کر ڈالا۔ اف، اگر اتنی ہمت تھی تو محبت سے آگ دہکانے کی کیا ضرورت تھی؟ نگارش دل میں یار لا میں گئی۔ کم ہوا۔ بھابی پلیز آہستہ بولیے، زری اور بھی گھبرا گئی۔ تو پھر جاؤ اندر، ان سے کھانا اور چائے پانی پوچھو۔ نگارش نے اسے اندر کی سمت دھکیلا۔ مگر بھابی وہ زری پاگل ہو کیوں گیا؟ وہ اندر بیٹھے کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اس طرح اکیلے بیٹھے بیٹھے تو انہیں اور بھی غصہ آئے گا، حالانکہ ہمیں تو ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نگارش اسے ہر طرح سے سمجھا رہی تھی، لیکن وہ ابھی بھی ڈر رہی تھی۔ تو پھر آپ میرے ساتھ آئیے، زری نے نگارش کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹا۔ لیکن میں عبداللہ کو فون تو کر لوں، بعد میں کر لیجیے گا، پہلے اندر تو آئیے۔ زری اپنی جگہ سے ہلنے کو بھی تیار نہیں تھی، اس لیے نگارش کو اس کے ساتھ ہی آنا پڑا۔ بیٹے آواز کم کر لو۔ لیکن اپنا اعتماد بحال کرنے کے بعد
لیکن اپنا اعتماد بحال کرنے کے بعد وہ دونوں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو ملک اسداللہ انہیں فون پر کسی سے محو گفتگو دکھائی دیے تھے۔ ان کو ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ دوبارہ اپنی بات کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ وہ بھی مصروف ہے، تم یہیں ٹھہرو، میں عبداللہ کو فون کر کے ابھی آتی ہوں۔ نگارش نے کافی مدھم آواز میں سرگوشی کی اور زری کا ہاتھ چھوڑ کر پلٹ گئی۔ ٹھہرو لڑکی۔ نگارش کے عقب سے ان کی گرجدار آواز ابھری اور نگارش کے قدم دہلیز پر ہی رک گئے۔ وہ نہ چاہتے بھی گھبرا گئی۔ واپس آؤ۔ انہوں نے اپنے واپس آنے کا حکم جاری کیا۔ جی کہیے۔ نگارش عبداللہ کے بڑے بھائی ہونے کے ناطے ان کا احترام کرتی مؤدب سی آ کھڑی ہوئی۔ کوئی ضرورت نہیں اسے فون کرنے کی، اسے خود آنے دو، آخر ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ اس کے آنے جانے کی روٹین کیا، کتنی فکر رکھتا ہے وہ بہن اور بیوی کا۔ وہ غصے سے تنزیہ بولے تھے۔ وہ شام 7 بجے آئیں گے۔ نگارش نے اس کے آنے کا ٹائم پہلے سے بتا دیا۔ او اچھا، تو شام 7 بجے واپس آتا، چاہے اس کے پیچھے اس کی بہن اور بیوی جو چاہے گل کھلاتی پھریں۔ لاکھ دی لعنت، پھر اسداللہ صاحب تھے۔ ملک اسداللہ اپنے باپ کی طرح جب بولتے تھے تو اچھا برا کچھ بھی نہیں دیکھتے تھے، بلکہ بولتے ہوئے تو ان کی سوچ میں مفلوج ہو کر رہ جاتی تھی کہ کیا بولنا اور کیا نہیں بولنا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نگارش کو ان کی بات گولی کی طرح لگی، وہ ایک دم بلبلا اٹھی۔ مجھ سے دھیمی آواز میں بات کرو لڑکی، میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اس انجان ملک اور انجان شہر میں 2 جوان لڑکیاں گھر پر اکیلی ہوں تو کوئی بھی کبھی بھی آ سکتا ہے گھر پہ۔ اگر میں آ سکتا ہوں تو کوئی اور بھی آ سکتا ہے، اور یہ بات ملک عبداللہ نے شاید کبھی سوچی نہیں۔ ان کی بد مزاجی کا تو نگارش کو پتہ تھا، لیکن وہ شکی مزاج بھی ان کی باتوں سے طرز فکر سے ظاہر ہو رہا تھا۔ نمبر 1، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، ملک عبداللہ کی بیوی اور آپ کی بھاوج ہوں۔ میں اگر آپ سے دھیمی آواز میں بات کروں گی تو آپ کو بھی مجھ سے تمیز سے بات کرنا ہوگی۔ نمبر 2، آپ جب سے آئے غلط ہی کہہ رہے ہیں۔ یہ ملک اور یہ شہر آپ کے لیے انجان ہوگا، ہمارے لیے تو نہیں نا۔ ہم اس ملک اور شہر کے باسی ہیں، یہاں 2 جوان لڑکیوں کے بجائے اگر ایک جوان لڑکی بھی گھر پر ہوگی تو کبھی بھی کوئی گھر میں نہیں آ سکتا، کیونکہ آنے والا بخوبی جانتا ہوگا کہ اس کا کیا حشر ہوگا۔ آپ کو بھی ہم نے خود آنے دیا، ورنہ میری ایک فون کال آپ اس گھر اس شہر سے تو کیا اس ملک سے بھی نکلوا سکتی ہے۔ آپ 5 منٹ کے اندر اندر اس ڈرائنگ روم کی بجائے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ اور نمبر 3، وہی بہنیں اور بیویاں مرد کے گھر سے جانے کے بعد گل کھلاتی جن کو پابند کر کے اور قید کر کے رکھا جاتا ہے، جن پر اعتماد نہیں کیا جاتا، جن کو دنیا سے کاٹ کے دیواروں سے لگا دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ عبداللہ ایسے نہیں ہے۔ انہیں بیوی پر بھی اعتماد ہے اور بہن پر بھی، لہٰذا آپ کو اس حوالے سے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود میرے لیے بڑی اہم ہے کہ آپ عبداللہ کے بڑے بھائی ہیں۔ اس رشتے کے حوالے سے آپ میرے بھائی بھی ہیں اور جیٹھ بھی۔ آپ کا احترام سر آنکھوں پر۔ جب تک عبداللہ نہیں آ جاتے آپ بیٹھیے، آرام کیجیے، حکم کیجیے کہ آپ نے کیا کھانا ہے، تب تک میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ نگارش بولنے پر آئی تو کمال کر دی زری حیرت زدہ سی آنکھیں پھیلائے نگارش کو دیکھتی رہ گئی۔ نگارش اتنی اسٹرانگ تو کبھی بھی نہیں لگی تھی جتنی اس وقت لگ رہی تھی، تو گویا زری کے مقابلے میں وہ کسی کے بھی سامنے ڈٹ جانے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ ملک اسداللہ نے جواباً کچھ کہنا چاہا، لیکن وہ اتنے میں اپنی بات مکمل کر کے ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی۔ تو اس تمیزدار بیوی سے شادی کی ملک عبداللہ نے؟ وہ زیر لب طنزیہ سے لہجے میں بولے تھے۔ نگارش بھابی ایسی نہیں ہے، بہت اچھی ہیں وہ۔ زری نے بھی اس کی طرفداری میں ذرا تاخیر نہیں کی۔ جتنی اچھی ہے میں دیکھ رہا ہوں، ہمارے خاندان میں اسی عورت کو بھاوج کہا جاتا ہے جو خاندانی ہو، اعلیٰ حسب نسب کی ہو، اس کے آگے پیچھے بھرا پورا خاندان ہو۔ ہماری ہم پلہ اور ہماری ٹکر کی ہونی چاہیے۔ ہماری بہو کسی 2 ٹکے کے خاندان کی 2 ٹکے کی لڑکی ہماری بہو نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی ہم اسے بھاوج مانتے ہیں۔ وہ پھر بولے، بنا سوچے سمجھے بولے۔ زری نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کے اسے روک دیا۔ بس بس، ذرا طرفداری کرنے کی کوشش مت کرو، ہم بنا کہے سب کچھ جانتے ہیں۔ ان کا لب و لہجہ حقارت لیے ہوئے تھا، جس پر زری کو کافی تکلیف ہوئی، لیکن دوبارہ بولنے کی جرأت نہیں کر سکی۔ اتنے میں نگارش بھی چائے لے کر وہاں آ چکی تھی۔ مسلسل 2 گھنٹے کی بھاگ دوڑ اور ڈاکٹرز کی ٹریٹمنٹ کے بعد صبح 6 بجے کے قریب ابا جی کو ذرا سا ہوش آیا۔ ان لوگوں کے دماغ ٹھکانے پر آئے۔ آدھے گھنٹے بعد انہیں آئی سی یو سے ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ مریم تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے سراہانے کھڑی ہوئی، وہ ان کا ہاتھ تھام کے سہلانے لگی۔ آپ لوگوں کی قسمت اچھی تھی کہ آپ انہیں بروقت ہسپتال لے آئے، ورنہ 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ اور لیٹ ہو جاتے تو یہ اٹیک ان کی جان بھی لے سکتا تھا۔ ڈاکٹر رضوی ان کا بی پی چیک کرنے کے بعد عدیل کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے کسی کو فرشتہ بنا کر ہماری مدد کے لیے بھیج دیا، ورنہ عدیل ورنہ سے آگے کچھ کہہ ہی نہیں سکا۔ اس کا دھیان اچانک مدیحہ کی طرف چلا گیا جو انہیں مشکل وقت میں یہاں تک چھوڑنے آئی تھی، لیکن پارکنگ میں اترنے کے بعد عدیل کو اس کا خیال ہی نہ، یہاں تک کہ اس کا شکریہ ادا کرنے کی بھی زحمت نہیں کی، اور اب اس کا خیال آتے عدیل کو اپنی سنگین ترین کوتاہی کا احساس ہوا تھا۔ اوہ مائی گاڈ، یہ کیا غلطی ہوگی مجھ سے؟ عدیل سر پر ہاتھ مارتا ڈاکٹر کو وہیں چھوڑ کے باہر کی سمت بھاگا۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ ڈاکٹر رضوی کیا سوچیں گے۔ وہ اسپتال کے طویل ترین احاطے سے بھاگتا اور پارکنگ میں ادھر ادھر متلاشی انداز میں نظریں دوڑانے لگا۔ وہ لوگ رات تقریباً 3:30 بجے یہاں آئے تھے۔ اس وقت کیسا گہرا اندھیرا تھا، ہر طرف الیکٹرک پول اور لیمپ پوسٹ روشن تھے، لیکن اس وقت صبح کے 6 بجے کا وقت تھا۔ دہکتا سورج فی الحال اپنی نوخیز کرنوں میں نرمیاں سمیٹے ہوئے انگڑائیاں لیتا بیدار ہو رہا تھا۔ سورج کی ہلکی ہلکی کسمساہٹ ماحول پر ایک عجیب سا سیر تاری کیے ہوئے تھی۔ نئے دن کی شروعات ہو چکی تھی، زندگی ایک بار پھر جاگ اٹھی تھی، اور عدیل اس جاگے سوئے وقت میں نئے دن کی روشنیاں لے کر مدیحہ حیات کو تلاش کرتا پھرا تھا، جیسے یقین ہو کہ ابھی وہیں ہوگی، لیکن ہر طرف نظر دوڑانے پر بھی جب وہ کہیں نہ نظر آئی تو مایوسی سے واپس مڑ گیا۔ دل میں پشیمانی ہلکورے رہی تھی۔ وہ سر چھٹکتا پارکنگ باؤنڈری سے نکل رہا تھا جب اچانک دائیں طرف نگاہ اٹھی اور بے یقینی سے دیکھتا رہ گیا۔
वो अपनी गेट से गाड़ी से टेक लगाए खड़ी चुपचाप इधर उधर आते जाते लोगों को देख रही थी और दिली से देखकर बेसाख्ता मुस्कुरा उठा। इसका कदम मदिया की सिमत उठने लगे। वो काफ़ी दूर खड़ी थी लेकिन अदील को बेहद करीब लग रही थी, इतनी करीब कि दिल की सांसें मुअत्तर सी हो गई थी। आसपास का सारा माहौल ही महक उठा था, किसी दिलकश जज्बे ने सब कुछ महका के रख दिया। वो मजबूत कदमों से चलता हुआ इसके सामने आ खड़ा हुआ, नजर इसके चेहरे पर जमा दी। अस्सलाम वालेकुम। अदील का लहजा भी कुछ और ही हो रहा था। मदिया ने चौंक कर अपने सामने देखा और इसे देखकर दोबारा नजरें हटाकर इधर उधर देखने लगी, जैसे इसने इसकी आमद का कोई नोटिस ही न लिया। आई एम सॉरी, वो दोबारा बोला, मगर अब की बार तो मदिया ने देखा भी नहीं कि वो सॉरी कैसे कह रहे। देखिए मैडम, मैं आपसे मुखातिब अपनी गलती पर माफ़ी मांगता हूँ, आप जो चीज़ चाहे सजा दे दे, बंदा हाजिर है। इसने ज़रा सा सर को कम करते हुए कहा तो मदिया ने इसके झुके हुए सर को घूर के देखा। कैसी माफ़ी और कैसी सज़ा? इसका लहजा इसकी तरह इसका लहजा भी तीखा था, अल्फाज भी तीखे थे। अपनी परेशानी में आपको यही भूल गया। अदील की नज़र इसके चेहरे को देखते हुए इसकी घनी मोरी से आप पलकों पर ठहर गई। इसकी शख्सियत का तीखापन इसकी पलकों से बेयां हो रहा था। मिस्टर, मैं कोई बेजान चीज़ नहीं जिसे आप जहाँ चाहे भूल जाएं, वो तंज़ी अंदाज में चबाकर बोली। इस वक्त तो आप मुझे बेजान चीज़ ही लग रही हैं, जिसे जहाँ छोड़ के गया था वहीं पे। अगर जानदार होती तो अपनी जान का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से वहाँ हो चुकी होती। अदील का लहजा दिलचस्प और मुतबस्सम सा था। मदिया ने एकदम सर उठाकर इसे देखा तो वो डायरेक्ट इसे ही देख रहा था। मदिया को इसकी आंखों में एक लो देता एहसास अपनी सिम थमकता हुआ महसूस हुआ। तभी वो नजर चुराकर अपनी जीन्स की पॉकेट में गाड़ी की चाबी निकालने लगी। कहाँ जा रही है? अंदर नहीं चलेंगी? मेरे अब्बा जी को होश आ चुका, ये सब आपकी मेहरबानी से हुआ। मेहरबानी जब भी होती है और ऊपर वाले की होती है, कोई बंदा कभी भी मेहरबान नहीं होता जब तक कि ऊपर वाला ना चाहे। माशाल्लाह, ऐसी बातें भी कर लेती हैं आप। अदील को मदिया से ऐसी बात की तवक्का नहीं थी, इसलिए कहे बगैर नहीं रह सका। क्या मतलब है आपका? वो गुस्से से इसकी सिम पलटी। मतलब एक बार फिर मुझसे कल गुस्ताखी होगी, माफ़ी चाहता हूँ। दिल मुस्कुराहट दबाते हुए बोला कि किसके तेवर खास से चार हाना थे। देखो मिस्टर, मेरे पास माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं होती, इसलिए बेहतर है कि आप अपनी बकवास अपने तक ही रखें। ओके ओके, अपने तक ही रखूँगा, लेकिन आपकी इत्तला की लर्ज़ है कि इस मिस्टर का एक नाम भी है जिसे लोग अदील उमर कहते हैं। अब इसकी आपकी मर्ज़ी कि आप मुझे अदील कहती हैं या उमर। अदील ने मुस्कुराते हुए इसे अपना नाम बताया। मदिया ने इसे इस्तज़ाई नज़रों से सड़ता पैर देखा। मुझे आपके नाम से क्या लेना देना? वो कंधे उचका के बोली। लेकिन मुझे तो आपके नाम से लेना देना है ना मैडम, कह के बोरियत होने लगी। प्लीज़ योर गुड नेम। अदील ने इंतहाई आजाना अंदाज में उसका नाम पूछा, जिस पर मदिया ने काफ़ी तीखी और तेज़ नज़रों से घूरा। आपको मेरे नाम से क्या लेना देना? मैडम, सारी बात बताने के लिए नहीं होती, कुछ बातें बस समझने के लिए होती हैं। आप अपना नाम बता दें, मैं किसी ऐसी जगह आपका नाम लिख दूंगा जो कोरे कागज़ से भी ज़्यादा कोरी होगी। न जाने दिल किस मूड में था कि बेसाख्ते कह गया और मदिया के तेवर और भी बिगड़ गए थे। किस खुशफहमी में आप? वो फनकार के बोली, जबकि अदील फिर भी मुस्कुरा दिया। सिर्फ इस खुशफहमी में कि जो इंसान बेजान चीज़ बन के मेरे लिए इतने घंटे की जगह पर खड़ा रह सकता है, तो अगर वो जानदार बन जाए तो क्या होगा? दिल ने बर्मिला इजहार किया। शट अप, जस्ट शट अप। मैं यहाँ आपके लिए नहीं, आपके फादर के लिए खड़ी हूँ, सिर्फ इसलिए कि शायद आपको दोबारा कोई काम पड़ जाए और आपको दोबारा टैक्सी और ऑटो के पीछे भागना ना पड़े। लेकिन यहाँ तो मेरा ख्याल है कि किसी को मदद करना भी मुहाल है, लोग अपने मतलब के लिए गलत मतलब निकाल लेते हैं। मदिया ने इसे छाड़ के रख दिया। तरीका गलत हो तो गलत मतलब ही निकलेगा ना मैडम। आपको अगर मेरे फालिद का इतना ही ख्याल था तो आपको अंदर आकर इनकी खैरियत पूछनी चाहिए थी। आपको पता था कि इनकी इतनी सीरियस कंडीशन है, फिर भी आप आराम से पार्किंग में खड़ी अंदर जाने की बजाय वापस जा रही, तो मैं इस चीज़ को क्या समझूँ? यही ना कि आप मेरे लिए मेरे इंतज़ार में खड़ी थी। मैं आया हूँ तो आप जा रही हैं। मेरे फादर की याद तो आपने फिर भी नहीं की। अदील ने जैसे शिकवा किया और मदिया इसकी बातों पर एक बार फिर धीमी पड़ गई। वो ठीक ही तो कह रहा था कि वो यहाँ इसके फादर के लिए खड़ी थी, तो इसे इनके अंदर अंदर भी जाना चाहिए था। अगर वो यहाँ इतना इंतजार करने के बाद भी वापस पलट जाती तो खुद ब खुद ही गलत मतलब निकल आते। इसमें दिल की तो कोई गलती नहीं थी, गलती इसकी अपनी थी, जिसे रफ़ा करने के लिए सर झुकाकर ढीले कदमों से इसके सिम चल पड़ी जहाँ से दिल इस तरफ आया था। और इस अस्पताल के अंदरूनी हिस्से की सिम बढ़ते देखकर दिल भी मुस्कुराते हुए इसके हमरा हो लिया। पार्किंग से इमरजेंसी वार्ड का फासला इन दोनों ने खामोशी से तय किया। दोनों एक साथ अंदर दाखिल हुए तो मरियम की नज़रें इन दोनों पर ठहर सी गई। वो लड़की जो भी थी लेकिन अदील के साथ चलती हुई जच रही थी। हेलो, मदिया ने करीब आके काफ़ी आहिस्ती से। अस्सलाम वालेकुम। मरियम अपनी जगह से खड़ी होगी। ये मरियम है, मेरी छोटी बहन। और मरियम ये। अदील इसका तारुफ करवाते हुए रुक गया। मदिया हयात। मदिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अपना तारुफ करवा अदील इसके नाम पर मुस्कुरा दिया। मदिया। वो ज़ेर लब दोहरा के बोला, फिर अब्बा जी के करीब जाकर खड़ा हो गया। वो भी मदिया को देख रहे थे, नज़रों का तासुर भी सवाल ऐसा था। अब्बा जी, इनका नाम मदिया हयात है, अदील भाई की दोस्त है, रात इनकी गाड़ी में आपको अस्पताल लेकर आए थे। मरियम ने करीब जाकर इन्हें तफसील से बताया। फारूक नियाजी के चेहरे और आंखों से शफकत का एहसास उभरा, जबकि मदिया और अदील लफज दोस्त पर ही हैरान और जज्बस हो रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? मदिया सर झटक कर इनसे मुखातिब हुई। सॉरी मदिया जी, ये बोल नहीं सकते। मरियम ने आहिस्ते और काफ़ी दुख से कहा, जिसमें मदिया ने बुरी तरह चौंक कर देखा। क्यों? क्योंकि ये बीमार है, पैरालाइज, और इनकी कंडीशन पिछले 4 साल से ऐसी चली आ रही है। मरियम का लहजा भीग गया और मदिया जैसे दम खुद खड़ी रह गई। इसने काफ़ी शश्तर से अंदाज में मरियम और अदील के चेहरे को सिम देखा। मरियम चेहरा झुकाए अपने आंसू पीने की कोशिश कर रही थी, जबकि अदील एकदम चुप खड़ा था।
جیسے اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ ہو۔ مدیہ تو رات سے یہی سمجھ رہی تھی کہ اس کے ابا جی کی ویسے تھوڑی بہت طبیعت خراب ہوئی تھی تو انشاءاللہ صبح تک ٹھیک ہو جائے گی، لیکن وہ اذیت اور تکلیف کی کس سٹیج پر ہے یہ تو اس وقت جان ہی نہیں پائی۔ یہ تکلیف تھی یا زندگی بھر کا عذاب تھا، خود ان کے لیے بھی اور ان کے گھر والوں کے لیے بھی۔ 4 سال کا عرصہ کچھ کم نہیں ہوتا، اور 4 سال کسی کی ایسی تکلیف اور اذیت کو جھیلنا بھی کم نہیں ہوتا، جس کو سوچ کر ہی مدیہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور دل و دماغ پر دکھ اور افسوس کی لہر دوڑ گئی۔ آپ کھڑی کیوں، بیٹھیے نا۔ مریم اپنے آنسو پہنچتے ہوئے اپنے آپ کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی اور بیڈ کے قریب کھڑی مدیہ کو بیٹھنے کا کہا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے ان کی تکلیف کا اس حد تک اندازہ نہیں تھا، میں تو سمجھ رہی تھی معمولی سی طبیعت خراب ہے، ان کے سینے میں تھوڑا بہت پین ہو رہا ہے تو وہی صبح تک ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن یہ سب تو۔ مدیہ حیرت زدہ سی باتیں تھوڑی چھوڑتے ہوئے خاموش ہوگی۔ اٹس اوکے، پہلی بار دیکھنے پہ کسی کو بھی صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا۔ خیر آپ پریشان نہ ہو، اللہ رحم کرے گا، آپ بیٹھیے آرام سے بات کیجیے، آپ بھی رات سے ہمارے ساتھ ہی جاگ رہی ہیں تو ناشتہ بھی کرنا ہوگا آپ نے۔ مریم کافی نارملی بات کر رہی تھی جیسے پہلے پہچانا، جبکہ مدیہ نے ناشتے کا سن کر بے ساختہ اپنے سیل فون سے ٹائم چیک کیا۔ 6:45 کا وقت ہو رہا تھا، گویا رات تمام ہو چکی تھی اور وقت کی رفتار گھوم پھر کر دوبارہ وہیں پر آ گئی تھی جب کل وہ صبح اپنے گھر سے نکلی تھی۔ کل صبح شاید 9-10 بجے کا ٹائم تھا اور اب صبح کے 7 بج رہے تھے۔ خیریت، کیا ہوا، کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ عدیل اس کے دیکھنے کا انداز سمجھ گیا۔ آئی تھنک مجھے اب چلنا چاہیے، ٹائم بہت ہو چکا ہے، وہ مریم اور فاروق نیازی کو دیکھتے ہوئے عدیل سے مخاطب ہوئی۔ ایز یو وش میڈم، آئیے میں آپ کو پارکنگ تک چھوڑا۔ عدیل سے روک بھی تو نہیں سکتا تھا، تبھی تو فوراً سر خم کر دیا۔ اوکے مریم جی، نائس ٹو میٹ یو، اللہ حافظ انکل۔ مدیہ نارمل سے انداز میں کہتی ہوئی مریم سے ہاتھ ملا کر پلٹ گئی۔ آپ دوبارہ کب آئیں گی؟ مریم نے شاید اپنے بھائی کے دل پر لکھا سوال پڑھ لیا، جسے سن کر مدیہ کے قدم یکدم تھم گئے۔ اس نے پلٹ کر مریم کو دیکھا۔ فی الحال تو کچھ کہہ نہیں سکتی، آپ کی یاد میں اثر ہوا تو ضرور آؤں گی۔ مدیہ سے جواب دے کر ٹھہری ہوئی تھی، باہر نکل اس کے پیچھے عدیل بھی لمبے لمبے ڈگ پھرتا ہوا نکل آیا تھا۔ ایک بات پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ عدیل نے اس کے برابر چلتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ مدیہ نے چلتے چلتے گردن موڑ کر دیکھا۔ پوچھئے، اس نے اجازت دی۔ رات کے 2 بجے آپ تنہا سڑکوں پر کیا کر رہی تھی؟ عدیل کے ذہن میں رات سے دبا ہوا سوال امڑ آیا، جس پر مدیہ کے قدم ٹھٹک کر رکے اور پیشانی پر ناگوار پل پڑے اور اس کا ازلی غصہ عود کیا گیا۔ میرا اور آپ کا ایسا کوئی تعلق نہیں کہ آپ مجھ سے کوئی پرسنل سوال پوچھیں، میری ذرا سی نرمی سے شاید آپ اپنی حد بھول گئے۔ میں رات کے 2 بجے تنہا سڑکوں پر کیا کری، یہ میرا اور میرے گھر والوں کا مسئلہ ہے، آپ کو اس کی فکر میں ہلکار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، سمجھے آپ؟ اس نے پل میں عدیل کو کھری کھری سنا ڈالی اور عدیل اس کے اس قدر جلدی بدلتے روپ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے مزید کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ عدیل اور کچھ کہتا بھی تو کیا کہتا سوائے معذرت کرنے کے۔ آئی ایم سوری میڈم، میں واقعی پرسنل ہو گیا تھا، یا پھر یہ کہنا چاہیے کہ میں آپ کی ذرا سی نرمی سے اپنی اوقات اپنی حد بھول گیا تھا، جس میں بہت شرمندہ ہوں۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ معذرت کو آنا لہجے میں معذرت کر رہا تھا اور مدیہ اس پر ایک نگاہ غلط ڈالے بغیر تنتناتی بھی آگے بڑھ گئی اور عدیل وہیں راستے میں کھڑا رہ گیا۔ مدیہ نے پلٹ کر اسے دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی، اپنی جینس کی پاکٹ سے چابی نکال کے لاک کھولا اور گاڑی نکال کے لے گئی۔ حالانکہ اسے خود بھی پتہ نہیں تھا کہاں جا رہی، ٹٹھے خوش جا رہی مدیہ بی بی۔ وہ دن کے خطر رات بھر کے رت چکے سے کافی بجھ سی گئی تھی، لیکن اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے فائزہ بیگم کی بھی کال آئی، اسے واپس آنے کے واسطے دے رہی تھی، لیکن مدیہ کی ایک ہی شرط تھی اور اس کی شرط ماننا ان کے لیے مشکل تھا۔ جب بھی مدیہ نے ایک دم فون بند کر دیا اور اپنے پیٹ کی بھوک کا بندوبست کرنے کے لیے اواری کا رخ کیا۔ اس نے رات سے کچھ نہیں کھایا، اس لیے اس نے کافی ہیوی ناشتہ آرڈر کیا۔ اس نے ناشتہ پوری رغبت سے کیا، تبھی ناشتے کے بعد طبیعت فریش ہوگی، لیکن ریسٹورنٹ سے نکل کر اپنی گاڑی تک پہنچی تھی کہ ساری فریشنس ہوا گئی۔ گاڑی کا لاک کھولتے اس کا سیل گنگنا اور جیسے اس نے نمبر دیکھا، اس کے ہونٹ پھنچ گئے اور اعصاب میں تناؤ ہو گیا، کیونکہ کال کرنے والا دلاور شاہ تھا۔ ہیلو، مدیہ کی اتنی جرأت نہیں تھی کہ اس کی کال ڈسکنیکٹ کرتی۔ دلاور شاہ بات کر رہا ہوں، اس کے غصے کی لپک اس کی بات سے ظاہر ہوتی۔ جی میں جانتی ہوں، صرف جانتی ہوں نا، پہچانتی نہیں ہوں۔ پہچانتی بھی ہوں، تم اگر پہچانتی تو پوری رات اور پورا دن گھر سے باہر نہ گزارتی۔ جس لاہور کی سڑکیں بھی دلاور شاہ کو سلام کرتی، تم انہی سڑکوں پر دلاور شاہ کا سر نیچا کرتی پھر رہی ہو۔ وہ غصے اور غضب سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ آپ کا سر نیچا ہو۔ شٹ اپ مدیہ، جسٹ شٹ اپ، اپنی زبان کو لگام دو۔ تم جو کچھ کر چکی میرا سر نیچا کرنے کے لیے وہی کافی ہے۔ بھائی آپ کو چوٹ لگی تو آپ کس قدر بلبلا رہے ہیں، اسی طرح آپ میری چوٹ کا بھی تو اندازہ کیجیے۔ وہ دبے لہجے میں چبا کر بولی تھی۔ دونوں بہن بھائی کے میٹر گھومے ہوئے تھے۔ تمہیں جو چوٹ لگی ہے وہ ہمیں بتاتی کیوں نہیں ہو؟ افسوس میرے پاس وہ الفاظ نہیں جو میری چوٹ اور میری اذیت کو بیان کر سکے، جس کے بعد یقیناً آپ بھی اور میرا معصوم اور سادہ لو بھائی نبیل بھی منہ چھپانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن میں بیان کروں بھی تو کیسے؟ اس لیے تو کہتی ہوں کہ اس شخص کے ہوتے ہوئے میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اگر میں وہاں رہی تو وہ بہت بڑا ہنگامہ ہو جائے گا۔ وہ انتہائی نفرت و حقارت سے بات کر رہی تھی۔ دیکھو مدیہ، میں نے اس وقت تم سے کوئی بحث کرنے کے لیے فون نہیں کیا، بلکہ صرف یہ کہنے کے لیے فون کیا ہے کہ اگر تمہیں میری عزت اور میری غیرت کا ذرا سا بھی احساس یا کوئی پرواہ ہے تو تم جہاں کہیں بھی ہو ابھی اور اسی وقت گھر واپس چلی جاؤ۔ میں اگر خود لاہور میں ہوتا تو تمہیں اپنے گھر لے جاتا، لیکن تمہارا اکیلے گھر میں جانا بھی مناسب نہیں، اس لیے تمہیں واپس اپنے گھر ہی جانا ہوگا۔ نبیل تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ دلاور نے فیصلہ مدیہ پر چھوڑ دیا۔ لیکن دلاور بھائی، میں نے تمہیں فورس کرنے کے لیے فون نہیں کیا، بس یہ کہا کہ اگر تمہیں میری عزت اور میری غیرت کا ذرا سا بھی احساس ہو تو واپس سے گھر چلی جاؤ، نہیں تو آج کی رات بھی باہر سڑکوں پر ہی گزار لینا۔ میں دوبارہ تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔
दिलावर ने दो टोक लहजे में बात करते हुए फ़ोन बंद कर दिया। मदिया जो की तो खड़ी रह गई। दिलावर भाई शान एक भाई होने के नाते हर बार इसके आड़े आ जाते थे और वो इनकी वजह से हर बार बेबस हो जाती। इस वक्त भी इसे खून के खून पी कर हथियार डालने पड़े। दिलावर ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਂ ਜਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਟਕਾ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਰਮਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਆ ਦਿਲਾਵਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਛ ਕਹੀਦਾ ਹੀ नहीं। बड़ी हवेली में मैं अपने पेरेंट्स की बात नहीं करी, ओवरऑल बात करी। बड़ी हवेली में आज जैसे पुरजोश सी हलचल मची हुई थी। यंग जनरेशन ने एक उधम सा मचा रखा था। सारी तैयारी अफरा तफरी के से आलम में हो रही थी और ये अफरा तफरी ज़्यादातर लड़कियों को लपेट में लिए हुए थी। कोई दुपट्टा मैच करी थी तो कोई अपने जूते, किसी को सूट से मैचिंग बैग चाहिए था तो किसी को मैचिंग ज्वेलरी की ज़रूरत थी। अनुषा और हुर्मत मुबारक खान को साथ लिए मार्केट गई हुई। इन्होंने अपनी कुछ ज़रूरी चीज़ें शॉपिंग करनी थी। कोमल और जवेरी को ब्यूटी पार्लर जाने की ज़रूरत थी, इसलिए वो दोनों जौरत के पीछे पड़ गई। हालांकि जौरत हाथ आने वाला नहीं था, लेकिन इसे अपनी कोमल आपा से बड़ी उनसीयत थी। ज़्यादा दिन इनकार न कर सका, इसलिए मानती बनी। लेकिन मेरे पास तो बाइक है, आप बाइक पे कैसे जाएंगी? तो किसी से गाड़ी ले लो ना। आई एम सॉरी, मेरी ड्राइविंग के पेशे नज़र कोई भी मुझे अपनी गाड़ी नहीं देता। जौरत शरारत से हंसा। तो फिर कोमल और जवेरिया परेशान होगी। तो फिर ये कि गाड़ी आप मांगे तो मिल सकती है। जौरत ने आंखों आंखों में आज़र की समझ इशारा किया, जो बाहर लॉन में बैठा चाय पीते हुए मैगजीन देख रहा था। मैं मांगू? कोमल बिदकी। जाना भी तो आपने, बालों की कटिंग, थ्रेडिंग और फेशियल भी तो आपने करवाने, कौन सा मैं करवाने जा रहा हूँ? जौरत ने लापरवाही से कहते हुए कंधे उचकर कोमल यकदम तिल मिला गई। तुम बहुत खबीस हो जौरत। जी मैं जानता हूँ, वो इतनी सारतमंदी से बोला कि जवेरिया से मुस्कुराहट दबाना मुश्किल हो गया। जाओ ना, गाड़ी मांगो इनसे। कोमल ने इशारा किया। उनसे? जौरत ने आंखें मटकाई। हाँ उनसे। वो जिद हो चुकी। तोबा कोमल आपा तोबा, मेरे बाप दादा की भी तोबा, मैं ओखली में सर नहीं दे सकता। ये काम करना तो आपने खुद ही करना, वरना मैं गया तो मेरी क्लास शुरू हो जाएगी, इसलिए प्लीज़। इसने कोमल को रास्ता दिया। मगर मैं यार चली जो, पहले इतना टाइम वेस्ट हो चुका है। जवेरियन की बहस से झंझला उठी। चाहिए ना? जौरत ने मानी खेर से देखते हुए कहा। कभी ना कभी तुम्हें भी कोई काम पड़ ही जाएगा जौरत, लेकिन देखना तुमसे बदला ना तो मेरा नाम भी कोमल अफंदी नहीं। उसे वार्न करती हुए अपना दुपट्टा शाने पर दुरुस्त करते लॉन में आई। अस्सलाम वालेकुम। इसने आज़र के करीब जाकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। आज़र ने मैगजीन से नज़र हटाकर कोमल की तरफ देखा। आप फारिग हैं? कोमल के पूछते हुए काफ़ी झिझक महसूस हो रही थी। जी क्यों, खैरियत? आपने कहीं जाना तो नहीं है? इसने हिम्मत करके अगला सवाल पूछा। फ़िलहाल तो कोई काम नहीं, इसलिए अभी कहीं नहीं जाना। आपको कोई काम है क्या? आज़र हैरानी से इसे देख रहा था। जी वो दरअसल आपकी गाड़ी चाहिए थी कुछ देर के लिए। वो किस लिए? इसने भवें उचकाई। वो हम लड़कियों ने ब्यूटी पार्लर जाना था। तो मुबारक खान कहाँ, इसके साथ चली जाए? वो हुर्मत और अनुषा को लेकर मार्केट गया हुआ, इन्होंने कोई शॉपिंग करनी थी। ओह अच्छा। आज़र को चुप होना पड़ा। साथ कौन जा रहा है? जौदत। ओके आप चाबी ले जाए, लेकिन जौदत से कहिए कि गाड़ी होशो हवास में रहकर ड्राइव करें। आज़र ने कहते हुए सामने टेबल पर अपने मोबाइल के साथ रखी कीचेन उठाकर कोमल की तरफ बढ़ा दी। थैंक यू सो मच। कोमल चाबी लेकर इसका थैंक्स कहती हुई पलट गई। कोमल, आज़र ने पीछे से आवाज़ दी। जी? कोमल जी जान से वापस मुड़ी। आपकी तबीयत कैसी है अब? इसके पूछने पर कोमल से एकदम सटपटा गई। ठीक हूँ माशाल्लाह, बड़ी जल्दी ठीक हो गई। उमत पसम से लहजे में पूछ रहा था। थोड़ी देर पहले टैबलेट ली थी। ओके अच्छी बात है, जा सकती हैं आप। आज़र ने नॉर्मल से अंदाज में मुस्कुराते हुए इसे इजाज़त दी और कोमल सर हिलाकर वहाँ से चलेगी। चौधर जवेरिया पौधों की ओट में खड़े कोमल को देखकर हंस रहे थे। ये लो जलील इंसान। इसने चाबी इसकी हथेली पर पटक दी। जलील इंसान ने आपकी मुलाकात करवा दी, और क्या चाहिए आपको? जौरत इसे छेड़ता हुआ गाड़ी की सिंध बढ़ा और फिर साथ की गाड़ी निकाल ले गया। हवेली में अब मुद्दत, आनिया और लीज़ा ही रह गई थी। मुद्दत और आनिया अपने तमाम ड्रेसेस मुलाजमत से प्रेस करवा के बैग में रखवा रही थी और साथ साथ अपने मास्क और मसाज भी जा रही थी। जबकि लीज़ा इन सब चीज़ों से बेनियाज थी। से ना तो किसी मास्क को मसाज की ज़रूरत थी, ना ही ब्यूटी पार्लर की, और इसके ड्रेसेस भी पहले से इतने मौजूद थे कि महीना भर भी कहीं जाने के लिए जाती तो रोज़ नया ड्रेस एक दिन कर सकती थी। इसलिए बाकी सबके मुकाबले में काफ़ी रिलैक्स और सुकून में थी। अलबत्ता इसे अपने मुलाजमों का काफ़ी ख्याल था। इसने रज्जो को पैसे देकर शॉपिंग के लिए भेजा हुआ था, लेकिन कोशिश के बावजूद इसे मंसूर हुसैन कहीं भी दिखाई नहीं दिया। इसी को ढूंढने के ख्याल से बाहर निकला है। अस्सलाम वालेकुम आज़र भाई। लीज़ा आज़र को देखकर वहीं चली गई। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो। आज़र के चेहरे पर खुशगवारियत छा गई। आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? लीज़ा इसके मुकाबले वाली कुर्सी पर बैठ गई। मैं अकेला कब हूँ? आज़र ने दिलचस्पी से पूछ कर आके पूछा। क्या मतलब, कौन है आपके साथ? तुम? मैं? अलीज़ा अपनी तरफ इशारा करते हुए हैरान हुई, लेकिन फिर इसकी बात समझ कर मुस्कुरा उठी। ओ तो आप अभी की बात करें शायद। लगता है काफ़ी खुशगवार मूड में है। 100%। आज़र ने इस बात में सर लिया। रीज़न? अलीज़ा ने फ़ौरन पूछा। विदाउट एनी रीज़न। आई कांट बिलीव इट। वो मानने को तैयार नहीं थी। बिलीव मी, आज़र ने मुस्कुरा कर कहा। ओके बट एनीवे स्वीट हार्ट, तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ कि किस काम से आई हो? आज़र ने बात बदली। आपसे ड्राइवर का पूछने आई थी। किसी ड्राइवर का? अपने ड्राइवर का। ओ मंसूर हुसैन का? जी इसी का पूछने आई हूँ। कहाँ है वो? सुबह से ढूंढ रही हूँ। गाड़ी सर्विस करवाने गया। वह थोड़ी देर तक आ जाएगा। कोई काम है क्या? नहीं कुछ खास काम नहीं, बस इसे मार्केट भेजना था। अलीज़ा ने कंधे उचका। तुम्हारी तैयारी मुकम्मल होगी? नहीं पैकिंग अभी करनी है, रज्जो मार्केट से आएगी तो पैकिंग कर देगी। ओह
लो वो मंसूर हुसैन भी आ गया। आज़ा की नज़र गेट की सिमत उठी और वो चमकती दमकती लश्कारे मारती मर्सिडीज़ गेट से अंदर आ रुकी। मंसूर हुसैन गाड़ी से उतरा ही था कि आज़ा ने इशारे से करीब बुला लिया। वो भारी कदम उठाता सबस घास बोलता हुआ इनके पास आ खड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे तुम? जी गाड़ी सर्विस करवाने गया हुआ था। तो इतनी देर क्यों लगा दी? दोपहर से निकले हुए तुम? गाड़ी वर्कशॉप छोड़कर अपने घर वालों से मिलना चला गया था। इतने दिनों के घर गए हुए काफ़ी उदासी हो रही थी। माजी और बाबा जी भी उदास थे। इनसे मिला तो खुश हो गए। वो कह रहे थे ये नौकरी छोड़ दो जिस पे तुम हमें भूल जाओ। मंसूर हुसैन बताते हुए भी उदास हो तो बोझल बोझल सा लग रहा था। आज़ा चाहकर भी मज़ीद कुछ न कह सका। इतने में आज़ा का सेल फोन बज उठा और वो कॉल अटेंड करता अलीज़ा से एक्सक्यूज़ करके उठकर दूसरी साइड पर चला गया। क्या तुम्हारे पास नए कपड़े नहीं हैं? अलीज़ा ने पहली बार मंसूर हुसैन को सर से पाँव तक गौर से देखा। इसके सस्ते से बेरंग कपड़े अलीज़ा की तबीयत के खिलाफ थे। वो तो अपने मुलाज़मों को भी खुशबू में बसा पर देखना चाहती थी। फ्रेश और ताज़ा था मंसूर हुसैन। वैसे तो साफ सुथरा धुला धुला ऐसे रहता, बस इसके कपड़े पुराने और बदरंग से थे जिनको वो हर बार धोकर पहनता था, लेकिन इनमें फिर भी कोई खास चमक दमक नहीं आई थी। नहीं बीबी जी, नए कपड़ों की क्या ज़रूरत है? 3 जोड़े वही काफ़ी हैं। कल से आपसे तनख्वाह मिली थी, वो आज अपने घर वालों को दिया। इंशाल्लाह आइंदा तनख्वाह मिली तो नया जोड़ा लेने की कोशिश करूँगा। यानी नया सूट लेने के लिए महीना भर इंतज़ार करोगे? जी तो और क्या करूँ? मंसूर हुसैन के चेहरे पर तलक सी मुस्कुराहट बिखर गई। तुम ऐसा करो कि अभी मार्केट जाओ और अपने लिए कपड़े लेकर आओ, पैसे मैं तुम्हें देती हूँ। अलीज़ा की बात पर मंसूर हुसैन ने बुरी तरह चौंक कर अपनी अलीज़ा बीबी की तरफ देखा कि अनाज भला किस लिए? कपड़े? मंसूर हुसैन को यकीन नहीं आया। हाँ कपड़े, रज्जो को भी भेजा, वो भी अपने कपड़े लेने गई है, तुम भी जाकर ले आओ। अलीज़ा न जाने क्या कह रही थी, मंसूर हुसैन के कुछ पल्ले नहीं पड़ा। लेकिन बीबी जी कपड़े किस लिए लेने? वो नासमझी से पूछा था। क्या कल सुबह ट्रिप पे नहीं जाना? जी हाँ जाना है, तो इसीलिए तुम्हें रज्जो को कह रही हूँ ना कि तुम दोनों भी नए कपड़े ले लो। सब ने नए कपड़े लिए हैं। रज्जो भी चलेगी, सिर्फ तुम रह गए हो। लीजा को अब अपने ड्राइवर की फिक्र थी कि वो नए कपड़ों में नहीं होगा तो बुरा लगेगा। ओ अच्छा, तो इसलिए कह रही हैं आप? मंसूर हुसैन धीमा पड़ गया। आओ मेरे साथ। लीजा कहती हुई कुर्सी से उठकर आगे पड़ गई। मंसूर हुसैन ने बेदिली से कदम इसके पीछे बढ़ा दी। वो आगे आगे चलती हुई छोटे से पुल से गुजरकर लॉन क्रॉस करके मेन रोड के डोर के सामने वाले हिस्से की सीढ़ियाँ तय करती हुई अंदर कॉरिडोर में दाखिल हुई और मंसूर हुसैन भी इसके पीछे आ रहा था। सीढ़ियों के करीब जाकर लीजा ठहर गई। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आती हूँ। वो कहकर सीढ़ियाँ चढ़ गई और मंसूर हुसैन वहीं का वहीं स्टैचू बन के खड़ा हो गया। लेकिन अभी चंद सेकंड गुजरते वकार फंदी और आयशा फंदी दोनों बहन भाई ड्राइंग रूम से निकलते हुए दिखाई दिए। मंसूर हुसैन वकार फंदी के साथ चलती सादा और नफीस सी लिबास में मलबूस इस खूबसूरत और ग्रेसफुल सी औरत को देख रहा था, जिससे बात करते वकार फंदी के चेहरे पर शफकत और मुलायमत बिल्कुल इसी तरह फैली थी जिससे लीजे से बात करते हुए इनकी पूरी शख्सियत पर तारी हो जाती। वो औरत जो भी थी, इसकी शख्सियत भी वकार फंदी से कम न थी। इनकी तमकनत, इनका वकार, इनकी चार ढाल से झलक रहा था। ये यकीनन बड़े साहब की बहन होगी, मंसूर हुसैन ने दिली दिल में अंदाज़ा लगा। सलाम साहब। इतने में दोनों करीब आ चुके थे, इसलिए मंसूर हुसैन ने फ़ौरन सलाम करना पड़ा। बस वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? पुलिस बीबी ने बुलाया था। क्यों? शायद कहीं भेजना है। ओ अच्छा अच्छा, इसने तुम्हें कपड़े लेने के लिए भेजना होगा, सुबह से पीछे पड़ी हुई है। वकार फंदी को जैसे याद है। जी शायद इसीलिए। मंसूर हुसैन ने सर हिलाया। ठीक है, लेकिन गाड़ी सर्विस करवाई तुमने? जी करवाई है। सामान वगैरह चेक किया? नहीं साहब, सामान रात को चेक करूँगा और रात को ही रख लूँगा। हाँ ये भी ठीक है। वो भी इसकी बात समझ चुके थे कि ऐसा काम सबके सामने करना ठीक नहीं। वो रात को ही सब कुछ कर लेता तो ही ठीक होगा। और इनसे मिलो, ये लीजे की इकलौती फुप्पी और हमारी इकलौती हमशीरा आयशा फंदी, ये भी ट्रिप पर साथ जाएंगी, इनका भी ख्याल रखना। मंसूर हुसैन ने चौंक कर देखा। इसका अंदाज़ा दोस्त साबित हुआ, वकार फंदी की बहन ही थी। सलाम बेगम साहबा। इसने मरूब से अंदाज में सलाम किया, हालांकि वो मरूब होता नहीं था। वालेकुम अस्सलाम। कौन है ये? आयशा फंदी ने वकार फंदी को सवालिया नज़रों से देखा। अलीज़ा का ड्राइवर है मंसूर हुसैन, इन्होंने सरसरी से बताया। मंसूर हुसैन? आयशा फंदी ने ज़ेर लब दोहराते हुए सर तपा देखा। बाकी कड़ियल जवान मर्द था। वो कितना बहादुर, कितना मजबूत था, इसे देखकर ये एहसास हो जाता था। लेकिन फिर भी आंखें गर्दन झुकाए कर रहा था। ड्राइवर ये लो पैसे। अलीज़ा की मदाखलत पर तीनों ने चौंक कर देखा। पैसे? मंसूर हुसैन को तनख्वाह के अलावा पैसे लेना हमेशा ही अजीब लगा था। इसका ज़मीर ही गवारा नहीं करता था कि कोई इस पर तरस खाए या हमदर्दी करे। वो बस मेहनत करके खाने पर खुश होता था, इसलिए ही काफ़ी था कि साहब ने इसे नौकरी दे दी। हाँ जाओ, जाकर अपने कपड़े ले आओ। अलीज़ा ने इसे पैसे थमाते हुए कहा। मंसूर हुसैन ने वकार फंदी को देखा। हाँ मंसूर हुसैन, रख लो और जाकर कपड़े खरीदो, तुम्हारे कपड़े हाथ से पुराने हैं। इन्होंने बेटी की हाँ में हाँ मिलाई। ठीक है साहब, और बीबी जी मेहरबानी आपकी। वो सर हिलाकर कहता हुआ इन तीनों को अल्लाह हाफिज़ कह के कॉरिडोर की तरफ बढ़ गया। अलीज़ा मुतमिन से इनके साथ बाहर आ गई। वाह बड़ी दयालु मैडम आ, कदी रज्जो ने शॉपिंग करांदी ते कदी ओनू शॉपिंग करांदी आ मंसूर हुसैन नू। गुड मॉर्निंग डैड। वकार फंदी इस वक्त डाइनिंग हॉल में ऑन और अदीद के साथ अकेले बैठे बातें कर रहे थे जब बाज़ भी वहीं आ चला है। मॉर्निंग माय सन, मॉर्निंग। आओ बैठो। इन्होंने अपनी बाईं साइड वाली कुर्सी की सिमत इशारा की। दाएं तरफ ऑन और अदीद बैठे हुए थे। बाकी सब कहाँ? आज़ा को सुबह सुबह डाइनिंग हॉल में पहले सुनाटे पर आए थे। सब अपनी अपनी तैयारी को फाइनल टच दे रहे हैं। अदीद ने इशारे से जवाब दिया, जिस पर वकार फंदी और आज़ा बेसाख्त हंस पड़े।
गुड मॉर्निंग डैड, कोमल की आवाज़ पर इन चारों ने बेवक्त सर उठाकर डाइनिंग हॉल के दाखिली दरवाजे की सिमत देखा। वाइट और फिरोजी बॉर्डर वाली वाइट लॉन्ग शर्ट जिसके पैरों को छू रही थी। लाइट से मेकअप और ज्वेलरी के साथ इसकी तैयारी भी मुकम्मल थी। आज़ा ने सरसी सही से लेकिन इसे सरता पैर देखा और कोमल की खड़े खड़े अपनी तैयारी पर की कि मेहनत वसूल हो गई। मौसद के जरूरी चल सेम टू बेटा, बैठो ना, नाश्ता करो। इन्होंने आज़र के बराबर वाली कुर्सी की सिमत इशारा किया, लेकिन उसके बराबर बैठने की हिम्मत नहीं रखती थी, इसलिए ऑनर दीद के बराबर बैठ गई। गुड मॉर्निंग, जौहरत ने अंदर दाखिल होते बुलंद आवाज़ से कहा। गुड मॉर्निंग डैड, अहमद और हमाद भी चले। गुड मॉर्निंग डैड, हुर्मत मुदत जवेरिया और आनिया भी एक साथ अंदर दाखिल हुई। रफ्ता रफ्ता पूरा हाल फुल हो गया। असरार अफंदी और सरबत बेगम भी आ चुके थे, अलबत्ता समरा बेगम और इजहार अफंदी घर पे नहीं थे, वो कराची गए हुए थे। गुड मॉर्निंग पापा। इतनी बहुत सारी आवाज़ों में लीज़ा की नरम सी आवाज़ उठी तो सारी आवाज़ें थम गई थी। अरे पापा का बेटा, पापा का जानू आ गया। वकार अफंदी ने बाजुबा कर दिया था। लीज़ा घर से बाहर जा रही थी, इसलिए इनका अंदाज़, इनका लहजा बेहद वालिहाना सा था। लीज़ा इनके सीने से लग गई। बस करे पापा, लीज़ा आप अकेली तो नहीं जा रही, बाकी सब भी तो जा रहे हैं, ओने ने टोका। बाकी सब तो कहीं ना कहीं जाते रहते, लेकिन मेरा बच्चा तो पहली बार जा रहा है, वकार अफंदी ने इसके पेशानी चूमते हुए कहा। तो फिर आप अपने बच्चे को या तो घर पे रख लें या फिर खुद साथ चले जाएं। आसिफ अफंदी ने भी खफकी से मदाखलत की, जिस पर वो सब हंस पड़े। इस हंसी मजाक में उन्होंने नाश्ता किया, रवानगी के लिए अपनी गाड़ियों की तरफ पहुंच गए। जाने से पहले वकार अफंदी ने रज्जो और मंसूर हुसैन को बुलाकर एक बार फिर हदायत जारी की और तब इन सबको रुखसती का परवाना दिया। वो सब अपना अपना सामान पहले गाड़ियों में रखवा चुके थे, इसलिए सबसे मिलकर अपनी गाड़ी में वहाँ बैठे। अलबत्ता वकार अफंदी लीज़ा को खुद गाड़ी तक छोड़ने आए। वो रुखसत हुई तो अंदर आ गए थे। वैसे एड्डा प्रोटोकॉल लीज़ा ने ज़रूरत तो ज़्यादा ही मिलता। 4 गाड़ियों पर मुश्तमिल ये काफिला अनजान और अनदेखी मंजिल की सिमत गामजन था। सबसे आगे लीज़ा की गाड़ी थी, जिसमें मंसूर हुसैन, रज्जो और लीज़ा थे। इसके पीछे आसर की गाड़ी, जिसमें वो चारों बहन भाई आज़र, जौदत, हुर्मत और मुद्दत। इनके पीछे अहमद की गाड़ी, जिसमें वो पांचों बहन भाई मौजूद थे, अहमद, हमाद, कोमल, जवेरिया और आनिया। और सबसे आखिर में दानियाल की गाड़ी, जिसमें दानियाल, जैन, अनुषा और इनकी वालदा मोहतरमा आशा अफंदी थी। अच्छा अपने अपने टब्बर दिया गड्डियाँ गई। आशा अफंदी अक्सर बीमार रहती थी, जिसकी वजह से डॉक्टर अक्सर इन्हें आबो हवा तब्दील करने का मशवरा देते थे, लेकिन अपने भाइयों के इसरार के बावजूद भी कभी शहर से बाहर नहीं गई थी। लेकिन इस बार सब बच्चों, हाय हाय, उठा करके मेरे मुंह पे लगा बगैरत खून। किधर थे हम लोग? एक मिनट रुकिए ज़रा, हाथों पे मच्छर ही काटी जा रही, मैंने कहा अंदर ही कर लूँ ब्लैंकेट में। अच्छा किधर थे? लेकिन इस बार जब सब बच्चों ने हॉलीडेज़ मनाने का प्रोग्राम बनाया तो वकार अफंदी ने बाकायदे ने बुलाकर साथ जाने का मशवरा दिया, और इस पर चाहते हुए भी वो इनकार नहीं कर पाई। क्या वो अकेली नहीं थी, सब बच्चे साथ थे, और यही एहसास इनकी तबीयत को और भी ताज़गी बख्श गया था। वो साथ चलने के लिए मान के और इन्जॉय भी कर रही थी, और इन्जॉय तो लीज़े भी कर रही थी। जैसे गाड़ी लाहौर के हंगामा के सड़कों से निकल कर मोटरवे पर आई तो इन सब की तबीयत पर खुशगवार सा असर पड़ा। लीज़े बीबी, रज्जो ने बेसाख्ता से मुखातिब किया। लीज़े गाड़ी से बाहर के मनाजिर दिलचस्पी से देख रही थी। आप पहली बार मरी जा रही हैं? रज्जो को चुप बैठना वसाप लग रहा था, जब भी बोलने के लिए रास्ता निकाला। हाँ पहली बार जा रही हूँ, लीज़े ने इस बात में जवाब दिया। ड्राइविंग सीट पर बैठा ड्राइव करता मंसूर हुसैन इन दोनों के सवाल जवाब आसानी सुन रहा था। तो आप पहले कभी क्यों नहीं गई? हालांकि अमीर लोगों के बच्चे तो हमेशा गर्मी में हॉलीडेज़ मनाने मरी ज़रूर जाते हैं। रज्जो को सब पता भी था, फिर भी हैरत का इजहार करी थी। वो अमीर लोगों के बच्चे होते हैं, बड़ी हवेली के नहीं। रज्जो अलीज़े के जवाब पर मुतासिर तो हुई, लेकिन चुप नहीं हो सकी। बेशक बड़ी हवेली के बच्चों पर पाबंदी है, लेकिन अलीज़े बीबी आप पर तो कोई पाबंदी नहीं है, आप तो हर जगह जा सकती हैं। अरे तुम्हें किसने कहा कि मुझ पर कोई पाबंदी नहीं? मुझ पर जितनी पाबंदी है कभी मेरे पापा से पूछो, वो भी तुम्हें बताएंगे। लीज़े को रज्जो की कमकली पर हैरत हो रही थी। लेकिन लीज़े बीबी वो पाबंदी तो ना हुई ना, वो तो एहतियात है। बड़े साहब को पता जो है कि आप ज़रा ज़रा सी बात का असर लेती, तबीयत ख़राब हो जाती है, आपकी नाजुक मजाजी के लिए तो एहतियात करते हैं। मुझे नाजुक मजाज भी तो उन्होंने बनाया ना। अलीज़ा हल्के से मुस्कुराई। रज्जो के साथ मंसूर हुसैन ने भी दिल ही दिल में इस बात की तायद की कि मंसूर हुसैन को कुछ ही अर्सा हुआ था इस हवेली में आए हुए, लेकिन वो इस कुछ अरसे में जान चुका था कि इस पूरी हवेली में जहमियत अलीज़ा बीबी की है, वो किसी और की नहीं। इसका रहन सहन शहज़ादी से कम नहीं था, वो बड़ी हवेली की रियासत की शहज़ादी थी और शहज़ादी किसी ज़िंदगी गुजारी थी। मंसूर हुसैन को कभी कभी बड़ी हैरत होती कि इस छोटी सी लड़की में आखिर ऐसा क्या जो इसे बाकी सब मुमताज़ और मुनफरद बनाता है। शायद ये कि वो वकार अफंदी की बेटी थी, लेकिन वकार अफंदी के 2 बेटे भी तो थे। इन्हें तो कभी ऐसा प्रोटोकॉल नहीं मिला जैसा लीज़े को मिलता था। या फिर ये कि वो सब कज़न से छोटी थी, लेकिन नहीं, बात तो फिर वही यहाँ पे आ जाती कि छोटे तो ऑनर दीद भी थे जो लीज़े से भी छोटे थे। ऐसे नाज नखरे तो कभी इनके भी नहीं उठाए गए जैसे हर रोज़ लीज़े के उठाए जाते। या फिर ये कहना चाहिए कि इस सारे प्रोटोकॉल की वजह इसकी हद दर्जा मस्त खूबसूरती थी, ऐसी खूबसूरती जो मंसूर हुसैन ने अपनी 29 साल ज़िंदगी में आज तक नहीं देखी। बल्कि जो देखी थी वो सारी खूबसूरती एक तरफ और लीज़े अफंदी की खूबसूरती एक तरफ थी। बल्कि फिर भी देखा जाता तो लीज़े के हुस्न का पलड़ा भारी रहता, क्योंकि वो बिलाशबा एक हसीन तरीन लड़की थी। इसकी दूधिया रंगत से लेकर ज़ाफ़रानी होंठों तक दिलकशी की बहारें सजतरेज होती नजर आती। इसके मासूम रुखसारों पर कई दिलों की धड़कनें बोसा देती थी, और कई दिल इसकी नोक के पलक पर ठहर जाते। शीशे से शफाफ आंखों में कोई अपना अक्स देख लेता तो अपनी दुनिया हार देता।
इसी दुनिया के खौफ से वकार फंदी से छुपा के संभाल के रखते हो। इसे देख कर एतराफ़ करना पड़ता कि वाकई वो ऐसी चीज़ है जिसकी हिफाजत करना ज़रूरी था, और ये भी ज़रूरी था कि इसे सैंत के रखा जाता और अलग प्रोटोकॉल दिया जाता। लेकिन हैरत की बात थी कि इस पर वकार फंदी ने इसे छुपा के रखने की वजह सबके साथ ट्रिप पर भेज दिया था। तो फिर साहब ने आपको ट्रिप पर क्यों भेज दिया? मंसूर हुसैन के जहन में आए सवाल को रज्जू ने ज़ुबान दे दी। वो तो अब भी नहीं भेज रहे थे, बस मैंने थोड़ी जिद की और थोड़ा आज़र भाई ने साथ दिया तो मजबूरन इन्हें मानना पड़ा। अलीज़ा की एक और बड़ी खूबी थी कि वो हद से ज़्यादा मासूम और सादा थी, नेक नियत और साफ दिल लड़की। रज्जो के साथ बातें करते हुए भी इसकी मासूमियत हनूस थी। बड़े साहब आपसे प्यार भी तो बहुत करते हैं, इनकी तो जान है आप में, मुस्कुरा के रज्जो ने कहा। जवाबन अलीज़ा भी मुस्कुराई। मेरी भी जान है इनमें, इन जैसा बाप कोई हो ही नहीं सकता। वो है तो मैं हूँ, मेरे पापा मेरा फ़ख्र है। अलीज़ा के चेहरे पर मोहब्बत के साए उतरा और बेसाख्त अपने सेल फोन उठाकर इन्हें मैसेज लिखने लगी और फिर आई मिस यू और आई लव यू के कई एक मैसेज एक साथ वकारबंदी के नंबर पर सेंड कर डाले। जिनके फौरी बाद इनकी कॉल आ गई। रियली पापा, मैं पहली बार शहर से बाहर जा रही, बहुत अजीब भी लग रहा है और बहुत अच्छा भी, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। अभी रज्जो के साथ मैं आपकी बातें कर रही थी। अलीज़ा शायद पहली बार इतने जोश से बोल रही थी, दूसरी तरफ वकारबंदी हंस रहे थे कि इनकी बेटी को बाहर जाकर बोलना आ गया। आई लव यू पापा, अलीज़ा ने बेसाख्ता इजहार किया और इसके ऐसे पुरजोश से अंदाज पर मंसूर हुसैन ने बिला इरादा इसे बैक में मिरर से देखा। वह बेपनाह खुश थी और सच्ची खुशी के रंग इसके पूरे चेहरे पर बिखरे हुए थे। अल्लाह नजरे बद से बचा, मंसूर हुसैन ने दिल ही दिल में कहते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, क्योंकि आज से पीछे से हॉर्न पर हॉर्न दे रहा था। अल्लाह तो नजरे बद तो बचा, तू गंदी नज़र ना ला दी जिन्नी तू रख के बैठा होया, पूरा रास्ता हो गया। नगारिश कहाँ हो? वो दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है? शाम 7 बजे अब्दुल्ला घर आया तो घर का दरवाज़ा खिलाफ मामूल खुला हुआ मिला, जिस पर से अच्छी खासी तशवीश हुई। निगारिश को पुकारता हुआ आया था। कहाँ हो तुम? और ये दरवाज़ा? जैसे अब्दुल्ला ने ड्राइंग रूम में कदम रखा तो इनकी ज़ुबान को ब्रेक लग गया, क्योंकि सामने का मंजर ही कुछ ऐसा था। मलिक असदुल्ला अपनी सख्ती और चाह जलाल समेत सामने सोफे पर विराजमान थे। इनके मुकाबले वाले सोफे पर जरिए नगारिश खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। ये जैसे उन्होंने बांदी बना के बिठा रखा, लेकिन सारी सिचुएशन से हटकर अब्दुल्ला मर्द था, मजबूत और साहब का मालिक। इसने चंद सेकंड में अपने तमाम तासुरात कवर कर लिए। वो कोई भी घबराहट और बौखलाहट जाहिर करके न खुद पर हावी होने का मौका फराहम नहीं कर सकता था, इसलिए समझदारी का सबूत देते हुए इसने हैरत के बावजूद भी अपनी हैरत जाहिर नहीं की, बल्कि एकदम पुरसकून और मुतमिन सा नजर आने लगा। तभी कदम आके बढ़ा दिया। अस्सलाम वालेकुम। वैसे अगर पीर होने के लिए नहीं उठे थे तो बस हाथ पर मिलाकर मुसाफा करने पर इत्तफा किया। वस्सलाम, कैसे हो? अल्लाह का एहसान, ठीक ठाक हूँ। आप सुनाए, आज हमारे गरीब को देखो कैसे रौनक बख्शती। अब्दुल्ला ब्रीफ के टेबल पर रख के सोफे पर बैठ चुका था। पाकिस्तान में गर्मी और लोड शेडिंग हो रही है, इससे सोचा कि हम भी ज़रा इंग्लैंड की फ़िज़ाओं में लुत्फ़ उठा लें। वो सोफ़े के हत्थे पर हाथ फेरते हुए बोले। और यकीनन आपने अभी तक इंग्लैंड की फ़िज़ाओं से लुत्फ़ नहीं उठाया होगा। अब्दुल्ला खफीफ सा मुस्कुराया। उठाएंगे, सारे लुत्फ़ उठाएंगे, पहले तुम लोगों से मिला तो कर ले। इनका अंदाज मुबहम सा था। ओके, मिलना भी होता रहेगा, पहले आप ये बताएं कि खाना वगैरह खाया आपने? अब्दुल्ला सारी बात छोड़ के मेहमान नवाजी पर उतरा। कोई ज़रूरत नहीं खाने की, खाना हम वहीं से खाएंगे जहाँ से पिछले 2 दिन से खा रहे हैं। इन्होंने इनकार किया। यानी आपके यहाँ 2 दिन हो गए? अब्दुल्ला ने पॉइंट की बात नोट की। बिल्कुल। तो 2 दिन पहले क्यों नहीं बताया आपने? बस कोई ज़रूरी काम निपटाना था। तो निपट गया काम? एक निपट गया, एक रह गया। इन्होंने कहते हुए नज़र जरी पर जमा दी। अब्दुल्ला इनकी बात तो नज़रों का मफहूम बआसानी समझ गया। जो रह गया इसे रहने ही दें। क्यों? आखिर क्यों रहने दें? क्योंकि इसी में आपकी भलाई है। अब्दुल्ला ने खुल्लम खुल्ला इन्हें धमकी दी। इनके बैठे बैठे खून खौल उठा। वो एकदम ठाड़ उठे थे। तुम हमें धमकी दे रहे हो? हमें? मलिक असदुल्ला को? इनकी बुलंद गरजदार आवाज़ दरो दीवार हिला देने की पूरी सलाहियत रखती थी। लेकिन इसी एक वक्त तो इनकी आवाज़ ने दरो दीवार के साथ साथ जरिए नगारिश को भी दहला के रख दिया, क्योंकि इनकी खूनख्वार आंखों में एकदम खून उतरा हुआ था। वजह से इन तीनों को अपनी आंखों से निगल जाने के दर पे हो रहे थे, और इनका पहला हदफ अब्दुल्ला ही था। हमारे दरमियान ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई जिस पर मैं आपको धमकी दूंगा, अब्दुल्ला ने कंधे उचकाते हुए लापरवाही से कहा। बात नहीं हुई, लेकिन तुमने बात का इशारा ज़रूर दिया। वो गुस्से से चबा कर बोले। ओ, तो आप इशारा भी समझते हैं? इसने हैरानी का इजहार किया, जिस पर मजबूर कर अब्दुल्ला और भी भड़क उठे। तो तुम कहना क्या चाहते हो? इनका मजाज पर हम रखते हुए खासे खतरनाक हो रहे थे। आप खुद समझदार हैं, मेरा इशारा समझ चुके हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं आपका इशारा समझ चुका हूँ, क्योंकि मैं भी आपका ही भाई हूँ। समझदारी वर्षे में मिली है। अब्दुल्ला का इत्मीनान और सुकून बरकरार था। लेकिन तुम्हारी समझदारी का वक्त ख़त्म हो चुका, अब हमारी बारी। अब वही होगा जो हमारी समझदारी कहेगी। इन्होंने दाएं हाथ से अपनी सिमत इशारा किया। अच्छा, तो फिर क्या कहती है आपकी समझदारी? क्या होना चाहिए? वो भवें सुकेटते हुए इन्हें सवालिया नज़रों से देख रहा था। बताएं तुम्हें कि हमारी समझदारी क्या कहती है? वो सख्ती से पूछे थे। जी हजूर, मैं हमतन गोश हूँ। अब्दुल्ला ने फ़ौरन सर इस बात में हिलाया। तुम दोनों अंदर जाओ। इन्होंने जरिए नगारिश को बेडरूम में जाने का इशारा किया। नहीं, ये दोनों कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी। ये दोनों पढ़ी लिखी और समझदार लड़कियाँ, छोटी बच्चियाँ नहीं कि इनसे कोई बड़ी बात छुपाई जाए। आपने जो बात कहनी है साफ साफ कहिए, हम सब सुन रहे हैं।
عبداللہ نے ان دونوں کو جانے سے روک دیا، حالانکہ زری وہاں سے اٹھ جانا چاہتی تھی۔ اس کی حالت جان سولی سے لٹکی ہوئی تھی، وہ ایسی سنگین سچویشن فیس نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی حالت کہہ رہی تھی، لیکن نگارش وہاں سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ ان دونوں بھائیوں کی جنگ لائیو دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ معاملہ بہت نازک اور گمبھیر ہو چکا تھا۔ تم سب سن نہیں رہے، بلکہ یہ کہو کہ تم سب بے حیا ہو گئے ہو، بے غیرت ہو گئے ہو تم۔ وہ عبداللہ کی سمت دیکھتے ہوئے غضبناک انداز میں تھاڑے، خبردار بھائی صاحب، بہت ہوگی عزت اور غیرت کی تکرار، میں آپ کو مزید اپنی انسلٹ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میں اگر بے غیرت ہوں تو آپ کہاں کے غیرت مند ہیں؟ کیا ملک حق نواز کے ہاتھ میں اپنی بہن آپ کی کوشش کے باوجود ٹھکرا چکا ہے آپ کی بہن کو، اور آپ اسی ملک حق نواز کے ساتھ اپنی دوسری بہن کا ہاتھ تھمانا چاہتے ہیں؟ کیا یہی غیرت مندی کا ثبوت ہے؟ کیا میں بھی آپ جیسا غیرت مند بن جاؤں، نام نہاد غیرت مند، جس نے اپنی جاگیردار اور اپنی پارٹی بڑھانے کے لیے اپنی بہنوں کی زندگیاں برباد کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ اگر آپ کی اپنی بہنوں سے کوئی ذاتی پرخاش تھی تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ نے زہر دے کر مار دیتے، کم از کم ایسی ذلت کی زندگی جینے سے تو بچ جاتی۔ اب کی بار عبداللہ نے جواب دیتے انہیں کے انداز میں وہ سیر کو سوا سیر ثابت ہو رہا تھا۔ جس کی قسمت، جس کا مقدر جہاں لکھا ہوگا وہیں شادی ہوگی نا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ انسان کا نصیب تو پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ لاکھ دی لعنت، ویسے پھر تیرے تھے دوبارہ ملک بڑے ملک اسد اللہ نے جیسے دامن جھاڑا اور سارے الزام ان کی قسمت اور ان کے نصیب کے ذمہ ڈال دی۔ اگر اس انسان کا نصیب، اس کا مقدر پہلے سے لکھا جا چکا تو پھر آپ کو اتنا تردد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب کچھ مقدر پہ چھوڑ دیں، جو جس کا مقدر ہوگا اسے مل جائے گا۔ عبداللہ نے لاجواب کر ڈالا، لیکن پھر بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن زرین ملک کا نصیب ملک حق نواز کے ساتھ لکھا جا چکا، اس نصیب کو جڑنے سے کوئی نہیں روک سکتا، نہ تم نہ کوئی اور۔ انہوں نے قہر بھری نظر عبداللہ پر ڈالی، دوسری زری پر ڈالی۔ وہ ساکت و سامت سی بیٹھی تھی، ملک حق نواز کا نام اس کے کانوں میں پکلے ہوئے سیسے کی مانند اترا۔ شیرین کو ٹھکرانے والے کے ساتھ زرین کو جوڑا چاہ رہا تھا، یہ رشتہ تھا یا عمر بھر کا پھندا؟ ملک حق نواز ایک بار مرے اور دوبارہ پیدا ہونے کے بعد ہر گناہ سے پاک صاف ہو کر بھی سامنے ہے، تو میں تب بھی اپنی بہن کا نصیب اس کے ساتھ جڑنے نہیں دوں گا۔ آپ چاہے جتنے مرضی جتن کر لیں، زری کی شادی ملک حق نواز کے ساتھ ہرگز نہیں ہوگی، چاہے اس کے لیے آپ مجھے گولی مار دیں۔ عبداللہ نے دو ٹوک کہتے ہوئے نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اور ملک اسد اللہ اپنی جگہ سے اٹھ کر عبداللہ کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ضد اور انا کا مسئلہ آ جائے تو گولی مارنا ہمارے لیے مشکل بھی نہیں ہے ملک عبداللہ صاحب، سامنے چاہے تم جیسا گبرو جوان بھائی ہو، چاہے زرین ملک جیسی جوان بہن، ہماری گولی بس نشانہ دیکھتی ہے، رشتہ تعلق نہیں دیکھتی۔ انہوں نے عبداللہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے دبایا۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ گولی سے ڈرنے والے جراثیم ہم میں بھی نہیں ہیں۔ اگر آپ حق بات کو ضد اور انا کا مسئلہ سمجھ رہے ہیں، بنا رہے تو ایسا ہی سے۔ اس نے کندھے اچکائے تھے۔ اسے پاکستان بھیجو، سارے فیصلے خود بخود ہو جائیں گے۔ اسے پاکستان بھیجوں گا نہیں، اسے پاکستان لے کر جاؤں گا خود اپنے ساتھ۔ عبداللہ نے اپنی طرف اشارہ کیا، ملک اسد اللہ چونک اٹھے۔ وہ خود پاکستان جانے کا کہا تھا تو کوئی واقعی اس مسئلے میں پوری طرح ٹانگ اڑانا چاہتا تھا۔ تم پاکستان جاؤ گے؟ جی، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ تم حویلی میں قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ تو آپ سے کس نے کہا کہ میں حویلی میں قدم رکھوں گا؟ عبداللہ کا انداز ان سے بھی زیادہ رکھا اور نپاتولا سا تھا۔ وہ اس کی بات پر ایک بار پھر چونکے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا مطلب کیا ہو سکتا ہے بھائی صاحب؟ مطلب تو سارے آپ کے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے تو شرط رکھی کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دوں گا تبھی حویلی میں قدم رکھ سکوں گا۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دوں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں حویلی میں قدم رکھ سکوں، لیکن اس پر بات پر تو پابندی نہیں ہے نا کہ میں پاکستان میں بھی قدم نہیں رکھ سکتا۔ اتنا بڑا پاکستان آخر کس کام آئے گا؟ پاکستان میں دلاور شاہ اور نبیل حیات کے اپنے گھر ہو سکتے ہیں، تو ملک عبداللہ کا بھی اپنا گھر ہو سکتا ہے، اور اس گھر میں ملک عبداللہ کی بہن ساری زندگی بھی رہنا چاہے تو بآسانی رہ سکتی ہے۔ اپنی بہن کا بوجھ اٹھا سکتا ہوں میں، اللہ کے کرم سے بہت دم ہے بازو میں، کمزور یا لاغر نہیں ہوں۔ عبداللہ نے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا اور وہ تب کے تم غلط کرے ہو ملک عبداللہ، اپنوں سے ٹکر لینے میں ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اپنے سے ٹکر نہ لیں تو اچھا ہے، ورنہ نقصان ہی ہوگا۔ وہ بھی ان کے باتوں کے گھیرے میں آنے والا نہیں تھا۔ ہم یہاں زرین کو لینے کے لیے آئے اور اپنے ساتھ لے کر ہی جائیں گے، تم چاہے کچھ بھی کر لو۔ انہوں نے دانت پیس کے کار پر رخ زری کی سمت موڑ لیا۔ اور تم بھی کان کھول کر سن لو، آج تمہارا پہلا پیپر تھا، اس لیے ہم آج تمہیں یہی بتانے آئے تھے کہ ہم تمہارے آخری پیپر تک انتظار کریں، پڑھائی ختم کرو، یہ پڑھائی کا بکھیڑا، اور واپس پاکستان چلو، ورنہ کیا ہوگا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ کہہ کر پلٹے اور ڈرائنگ روم سے نکل کے عبداللہ چاہنے کے باوجود انہیں روک نہیں سکا، اور زرین کی دھمکی پر خاک کا ڈھیر ہوگی، اس کا جسم سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ نگارش الگ پریشان تھی، اور عبداللہ ڈرائنگ روم کے بیچوں بیچ کھڑا گہری سوچ کا شکار تھا۔ اسے اپنے سامنے کھلی جنگ نظر آتی، اور زید اور انا کی اس جنگ میں کیا نفع کیا نقصان یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ تو صحیح اس طرح ہی ہے، ان کی انجام ہونا ہوتے ہوں پہلے تو قبل از وقت کوئی نہیں نہ دس سکتا۔ بھائی کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جودت نے سامنے ونڈو سکرین پر نظر جمائے ڈرائیو کرتے آزاد سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ آزا نے ذرا گردن موڑ کر جودر کو دیکھا جو وہ اس کے برابری فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ مطلب کہ منصور حسین ڈرائیونگ میں کمال کی مہارت رکھتا ہے، اور اس کی ڈرائیونگ دیکھ رہے ہیں آپ؟ گاڑی روڈ پر نہیں پانی پر پھسلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، لگتا ہے کہ بہت ماہر ہے اس چیز میں۔ جودت پچھلے 3 گھنٹے سے اسے فرنٹ سیٹ پر بیٹھا یہی ایک چیز نوٹ کر رہا تھا، اور آخر سے سرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں، واقعی بہت مہارت ہے سر، اس کی مہارت نظر بھی آ رہی ہے۔ جس رش سے گاڑی نکالنا ہمارے لیے بھی مشکل ہوتا ہے تو وہاں سے بھی آسانی سے نکل جاتا ہے۔ اس نے ایک بار بھی گاڑی کے ٹائروں کو بے ربط نہیں ہونے دیا، بالکل برابر جا رہے ہیں۔ آزا نے بھی اس کی تعریف کرتے ہوئے بخل سے کام نہیں لیا بلکہ کھل کر سراہا تھا۔
इन दोनों भाइयों की नज़र सामने रोड पर फिसलती लीज़ा की गाड़ी पर थी, जो कभी भी तेज़ रफ्तारी की वजह से इनकी आंखों से ओझल हो जाती। आखिर ड्राइवर किसका? महारत तो होगी, डैड ने भी तो चुन के ड्राइवर रखा होगा इसे। जो औरत ने मुस्कुरा के कहा, भाई। हुरमत ने आसिर को पुकारा। जी। आपने स्टॉप नहीं लेना? क्यों? वो कोमल को भूख लगी, कुछ खाना चाहती है, हुरमत ने आहिस्ती से बताया। कोमल को भूख लगी है? तुम्हें कैसे पता? इनकी गाड़ी तो पीछे आ रही है, आज़ा ना समझी से पूछा था। इसने मेरे नंबर पर मैसेज किया, हुरमत ने कोमल के बताने का जरिया बताया। ओ अच्छा, आज़ा ने समझते हुए सर लाया। कोमल आपा गुस्से की बहुत तेज़ और भूख की बहुत कच्ची है, इसलिए जल्दी इंतजाम कर लीजिए भाई जी। हुरमत ने हंसते हुए छेड़ा, लेकिन आज़ा इसकी जुबानी बात की गहराई तक नहीं जा सका, बल्कि इसका अंदाज बहुत सरसी सा था। अब तो इस्लामाबाद पहुँच कर ही कुछ होगा, यहाँ नज़दीक तो कोई रेस्टोरेंट नहीं। आज़ा ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। इस्लामाबाद पहुँचने में कितना वक्त है? हुरमत का कोमल का दूसरा मैसेज पढ़ के आज़ा से पूछा। बस थोड़ा ही टाइम रह गया, आज़ा ने घड़ी देखते हुए कहा और इसे तसल्ली दी। भूख तो मुझे भी लग रही है और इस्लामाबाद के सेवर से खाना खाने का मूड हो रहा है, जोरत ने अंगड़ाई लेते हुए सुस्ती से कहा। सेवर का खाना नहीं, बिरयानी मशहूर है, बिरयानी भी हर किस्म की। आज़ा ने इसकी बात की तस्दीक की। जी हाँ, मैंने भी बिरयानी खाने का कह रहा था, वहाँ की बिरयानी तो मशहूर है। जोरत भी जानता था, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ पहले भी कई बार इस तरफ आया था और हमेशा वो लोग सेवर पर ज़रूर जाते। चलो फिर आज सेवर पर ही सही। आज़र भी वहाँ जाने पर आमादा था और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और साथ ही मोबाइल उठाकर मंसूर हुसैन को भी सेवर पर जाने की इतला दी, ताकि अब इसी साइड पर टर्न ले। इसने सारतबंदी से ओके कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। गड्डियाँ ड्राइव करते हुए भी फ़ोन आता फुर्सत नहीं है इन्होंने। सेवर से अपनी पसंद की बिरयानी खाने के बाद इन लोगों ने बेकर्स का रुख किया, जो सेवर से ज़्यादा दूर नहीं था। वहाँ की कोल्ड कॉफ़ी आज़र को बहुत पसंद थी और जब भी किसी काम के सिलसिले में इस्लामाबाद आता, बेकर से कॉफ़ी पिए बगैर नहीं जाता था। वो चारों गाड़ियाँ पार्किंग में पार्क करने के बाद गाड़ियों से उतरा, अलबत्ता लड़कियाँ गाड़ियों में बैठी थी। आज़र ने पार्किंग में फिरते वेटर्स को ऑर्डर लेने के लिए गाड़ियों की सिमत इशारा किया। वेटर्स मेन्यू बुक हाथ में लिए अलर्ट खड़े थे, इशारा मिलते सर खम कर दिया और फ़ौरन गाड़ियों की सिमत बढ़ गई। अलबत्ता आज़र खुद अलीज़ा की गाड़ी की सिमत है। मंसूर हुसैन ने आज़र को देखते अलीज़ा की साइड का शीशा फोल्ड कर दिया। कॉफ़ी पियोगी? इसने खिड़की पे झुकते हुए लीजा से पूछा। आपको पता है मैं कॉफ़ी नहीं पी सकती, इतनी कड़वाहट मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। इसने मुंह बनाया। कोल्ड कॉफ़ी है यार। आज़र मुस्कुराते हुए इसे कॉफ़ी पीने पर आमादा कर रहा था। है तो कॉफ़ी ना। वो कॉफ़ी पीने को तैयार नहीं थी। यार बहुत बुज़दिल हो तुम, कॉफ़ी पीने से डरती हो, एक बार ट्राई तो करके देखो। वो इसे उकसा रहा था। ਹੁਣ कॉफ़ी ना पीन दे नाल केड़ा बुज़दिल होंदा। मैं तो आप नहीं कॉफ़ी पीती, मुझे नहीं पसंद, कभी नहीं पीती। एक कदी बारी ट्राई की थी, कड़वी थी, तो फिर मैं उस तो बाद कत्ती कॉफ़ी नहीं पीती। मैं तो चाय नहीं पीती, लेकिन काफ़ी हरगिज़ नहीं पीती चाय। तो फिर जो बहुत शदीद बीमार हुआ तो एक कुछ दिल ते पत्थर रख लैनी है, लेकिन कॉफ़ी का नो चांस। ओके ले आए, बिला कर वो मान गई। मंसूर हुसैन तुम क्या लोगे? ज़रूरत नहीं साहब जी, मैं तो खाना खाया, अभी तो खाना खाया। इसने इनकार कर दिया। ओके। आज़र पलट कर अंदर चला गया। अहमद, हमाद, जौदत, दानियाल और जैन पाँचों इसके पहुँचने तक अपना अड्डे तैयार करवा चुके थे। एक कप अलीज़े के लिए भी। दानियाल के हाथ से अपना कप थामते हुए आज़र ने दानियाल को एक और कप तैयार करवाने का कहा। अलीज़े और कॉफ़ी दो मुतज़ाद चीज़ें हैं यार। दानियाल को हैरानी हुई। आई नो यार, बट मैंने कहा तो वो ज़रूर पिएगी। आज़र कॉफ़ी के बड़े से कप में स्ट्रॉ और स्पून इंसर्ट करते हुए मुस्कुरा के बोला। ओ तो वो तुम्हारे कहने पर कॉफ़ी पी रही है? दानिया ने आज़र के चेहरे को बगौर देखते हुए काफ़ी ज़ूमानी लहजे में पूछा था। एक तो इन्हां दी ज़ूमानियां नहीं मुकदियां। कोमल नूं वेख के जो ते हुरमत मजाक नहीं कर, ज़ूमानी गल्लां नहीं करन तो हटदे थे। हुण दानियाल भी अलीज़े तो ज़ूमानियां गल्लां कर रहा। क्यों नहीं पीनी चाहिए? उल्टा आज़र ने इससे पूछ लिया। अरे नहीं नहीं यार, पीनी चाहिए, ज़रूर पीनी चाहिए, लेकिन ये इतना ज़रूर याद रखना कि भी आधा सफ़र बाकी है, कोई मसला ना खड़ा हो जाए। दानियाल भी अपनी आइसक्रीम शेक से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए कहा था। डोंट वरी यार, मैंने सोचा पहली बार हमारे साथ आइए, खाए पिए एंजॉय करे, सिर्फ घूमना फिरना ये तो एडवेंचर नहीं है, इसलिए कॉफ़ी पिलाना भी एडवेंचर ही होगा। आज़र लीज़े को इस ट्रिप के तमाम रंग करीब से दिखाना एंजॉय करवाना चाहता था और इसके लिए ज़रूरी था कि उसे अपने साथ हर काम में शामिल किया चाहता, चाहे ज़बरदस्ती और इसरार करके से। लीजिए मैम आपकी कॉफ़ी। अलीज़े ने आज़र ने लीज़े की साइड पर खिड़की में झुकते हुए कहा। थैंक्स। अलीज़े ने मुस्कुराते हुए कप थाम लिया। ओके एंजॉय करो। आज़र तमाम ऑर्डर्स का बिल पे करने के लिए वापस पलट गया। जो खर्चा सारा आज़र चकदा पे। लेकिन जैसे लीज़े ने स्ट्रॉ के जरिए कोल्ड कॉफ़ी अपने हलक से नीचे उतारी, इसके चेहरे के जावे बिगड़ गए। इसे यूँ लगा जैसे इसने जहर पी लिया। इसे बहुत ज़ोर की उपकाई है, वो एक झटके से गाड़ी का दरवाज़ा खोल के नीचे उतरा। इसने मुंह में भरा हुआ मशरूब नीचे उगल दिया। कड़वाहट की वजह से इसके मुंह का जायका भी ख़राब हो गया और इसे उपकाई आने लगी। इसकी ज़ोर ज़ोर से उपकाई की आवाज़ पर अंदर की सिम पड़ता आज़र एकदम करंट खा के पीछे की तरफ पलटा। अलीज़े, वो इसे पार्किंग के फुटपाथ के करीब झुकी उपकाई करती हुई नजर आई। उसे देख कर घबरा गया। तू भी आला उन कॉफ़ी बगैरत जा। ओ माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? वो अपने आप को सरजनिश करते हुए लपक के इसके करीब आई। इतने में रज्जो भी गाड़ी से निकल कर लीज़े को थाम चुकी थी। क्या हुआ लीज़े, तुम ठीक हो? आज़र ने इसका दूसरा बाजू भी थाम लिया। वो कॉफ़ी इतनी कड़वी। अलीज़ा को अपनी ज़ुबान, अपना मुंह बेहद कड़वा महसूस हो रहा था। रज्जो, गाड़ी से पानी की बोतल लेकर आओ। आज़र ने रज्जो को इशारा किया। जी साहब। रज्जो लपक के गाड़ी के अंदर घुस गई और फ़ौरन पानी की बोतल निकाल लाई। ये लो।
आज़ा ने ढक्कन खोलकर बोतल इसकी सिमत बढ़ा दी और लीज़ा ने कुल्ली करने के बाद पानी पिया, लेकिन इसके मुंह का जायका फिर भी बेहतर नहीं हुआ। क्या हुआ इसे? इतने में दानिया और जौदत वगैरह भी वहीं आगे लीज़ा की सिमत मुतफक्कर सी नज़रों से देख रहे थे। आज़ा ने एक हाथ में मिनरल वाटर की बोतल थाम रखी थी, दूसरे हाथ से अपनी जेब से रुमाल निकाल के इसकी सिमत बढ़ा दिया। नीचे फर्श पर कोल्ड कॉफ़ी का कप औंधा पड़ा था, जिसकी वजह से फर्श गंदा हो रहा था। अजीब सी सिचुएशन थी यहाँ, लेकिन दानियल बगैर बताए जान चुका था कि यहाँ क्या हुआ है। मैंने कहा था ना आज़ा साहब, अभी आधा सफ़र बाकी है, दानियल ने इसे मतवजा करते हुए चोट की और काफ़ी छेड़ने वाले अंदाज में कहा। ये बातें बाद में करना, पहले इसके लिए जूस लेकर आओ। आज़ा ने दानियल को घूर के देखा और दानियल मुस्कुरा दिया। वो कंधे उचका कर पलट कर अंदर चला गया। क्या हुआ लीज़ा को? आयशा फंतीन को लीज़ा की गाड़ी के करीब खड़े देखकर अपनी गाड़ी से उतराई। कुछ नहीं हुआ पप्पो, ठीक है ये। आज़र खुद ही सबको तसल्लियाँ दे रहा था, क्योंकि गलती इससे हुई थी, इसने हैंडल भी इसी ने करी थी। और लीज़ा आज़र के चेहरे के घबराए हुए तासरात देखकर इसकी परेशानी समझ गई, इसलिए इसे इस घबराहट और परेशानी से निकालने के लिए इसे अपने आप कंट्रोल करना पड़ा। लेकिन कुछ तो हुआ ना? आयशा फंदी भी परेशान हो चुकी थी। इट्स ओके पप्पा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ये थोड़ी सी कॉफ़ी पी ली तो अच्छी नहीं लगी, इसलिए आज़र भाई ने अब जूस मंगवाया। लीज़ा ने मुतमिन करने के लिए खुद ही ने तसल्ली दी। लीजिए जनाब, जूस हाजिर है। दानियल जूस लेकर बहुत जल्दी वापस आया। थैंक यू, लीज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा। जूस का मग थाम लिया। इसी तरह मुस्कुराती रहा करो यार, तुम्हारी ज़रा सी तकलीफ हमारी जान निकाल देती है, दानियल भी जवाब में मुस्कुरा कर बोला। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आप लोगों की जान ना निकालूँ, मगर फिर भी वो जुमला अधूरा छोड़ते हुए दिलचस्पी और शरारत से हंस पड़ी। लेकिन फिर भी निकाल ही देती हूँ। दानियल इसका अधूरा जुमला मुकम्मल करते हुए एकदम कहका लगा के हंसा, जिस पर लीज़ा, आयशा, पंदी, आज़र और जौदत भी अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पाए। आप लोग गाड़ी में बैठे, मैं तब तक बिल क्लियर करवा के आता हूँ, आज़र कहकर वहाँ से चला गया। और गाड़ियों से निकली हुई अवाम दोबारा अपनी अपनी गाड़ी संभाल चुकी थी। लेकिन अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ती हुई लीज़े को देखकर जौदत के दिल में न जाने के समय की वजह से लिफ्ट मांग बैठा। क्या मैं भी मर्सिडीज़ का मज़ा ले सकता हूँ? वो शरारत से कहते हुए लीज़े से पूछ रहा था। अरे क्यों नहीं जौदत भाई, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अलीज़ा खुश होकर बोली। इसे अपने सारे कज़न से मोहब्बत थी, क्योंकि सब कज़न को इससे जो मोहब्बत थी इतने चाहते थे। इसे मंसूर हुसैन ने गाड़ी की लेफ्ट साइड की तरफ झुकते हुए फ्रंट डोर खोल दिया। आहा, इसमें बैठने का तो मज़ा ही कुछ और है, जौहरत ने खुल के इजहार किया। गाड़ी निकालो मंसूर हुसैन, आज़र ने अंदर से आते इन लोगों को सिग्नल निकलने का सिग्नल दिया। मंसूर हुसैन ने गाड़ी के शीशे चढ़ाते हुए गाड़ी स्टार्ट कर ली। अब कहाँ चलना साहब? मंसूर हुसैन ने गाड़ी रोड पर डालते से पहले जौदत से पूछा। मुझसे नहीं, अपनी मैडम से पूछो, मैं तो इस गाड़ी में मेहमान हूँ, जौदत ने लापरवाही से कहते हुए कंधे उचकाए। और मंसूर हुसैन की नज़रों का सवाल का रुख लीज़े की तरफ हो गया। इसने बैक मिरर से लीज़े की सिम देखा। अब कहाँ जाना मैडम? मुझे क्या पता कहाँ जाना, मैं कौन सा यहाँ आती जाती रहती हूँ, आपने पूछना तो आज़र भाई से पूछें। इसने नफ़ी में सर हिलाते हुए लाइल में ज़ाहिर की। जी चलिए जनाब, आप आज़र भाई से पूछिए। जौहरत ने मंसूर हुसैन को शरारत से इशारा किया। मंसूर हुसैन की मजबूरी थी कि इसको पूछना ही पड़ा। वो अपनी गाड़ी से उतरकर आज़र की गाड़ी के पास है। किस तरफ जाना है साहब? वो इनके अगले पड़ाव का पूछ रहा था। यहाँ से शाह फैसल मस्जिद करीब है, पहले वहाँ चलते हैं, फिर बाद में लोग परसा, शक्करपड़ियाँ, लेक व्यू पार्क और छत्तर पार्क जाएंगे। आज़र ने बिलतरतीब सब जगहों के नाम गिनवाए और उन सब जगहों पर जाना है। आपने सब पिकनिक स्पॉट एक ही दिन में देखने हैं? मंसूर हुसैन को हैरत हुई। बिल्कुल, क्योंकि हमने पिकनिक स्पॉट सिर्फ देखने, यहाँ डेरा डाल के नहीं बैठना, मरी के लिए भी निकलना है। आज़र ने मंसूर हुसैन की बात मजाक में उड़ाई। ठीक है साहब, जैसे आपकी मर्ज़ी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, आपको एक एक जगह पे इतना टाइम लग जाएगा, आप यहीं ठहरने पर मजबूर हो जाएंगे। हम यहाँ नहीं ठहर सकते, हमने यहाँ कोई बुकिंग नहीं करवाई हुई, इसलिए हमें अपने बंगले पर पहुँचना है, रात में ही ठहरने का इंतज़ाम है, समझे तुम? आज़र ने से वजह बताई। जी साहब, ये भी बेहतर है। मंसूर हुसैन सर हिला के वापस आ गए, फिर ड्राइविंग सीट संभाली। थोड़ी देर पहले रास्ते में आज़र भाई को मैं भी यही समझा रहा था कि शाम हो जाएगी, लेकिन वो कहते बेशक शाम हो जाए, हमने ये रात मरी में बसर करनी है, जैसे वहाँ इसके लिए इनके लिए कोई दुल्हन बैठी इंतज़ार कर रही है। ज़्यादा मजाक के मूड में था। आज़र भाई दिगड़ी चुपा के मजाक कर ज़रा। अच्छा तो ये बात थी, मुझे तो पता ही नहीं था। मंसूर हुसैन ने पहली बार मजाक में इसका साथ दिया। जौदत भाई, मैं बताऊँ कि आज़र भाई को कि आप इनका मजाक उड़ा रहे हैं? अलीज़ा ने धमकी दी। बताना, ज़रूर बताना, लेकिन मरी पहुँच कर, जौहरत ने कहका लगाते हुए कहा। मंसूर हुसैन अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पाए। जौहरत भाई, वो हमसे बड़े हैं। हाँ हाँ, वो सिर्फ तुमसे बड़े हैं, तुम्हें बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, तुम आज़र भाई की और डैड की काकी हो, जौहरत कहते हुए खूब हंस रहा था। आप अब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? लीज़ा ने इसे खफकी भरी नज़रों से देखा। मैं ऐसी गुस्ताखी का सोच भी नहीं सकता। तोबा तोबा, तुम तो इतनी प्यारी को तुम्हारे गीत गाने को दिल चाहता है। वो झूम के बोला। गीत? अरे हाँ जौहरत भाई, आपका गिटार का आप साथ नहीं लाए? लीज़ा को अचानक इसके गिटार का ख्याल आया। लाया हूँ यार, सब कुछ लाया हूँ, लेकिन मई चल के, जौहरत ने फिर शरारत से कहा और हंसते हुए सीधा होकर बैठ गया। मंसूर हुसैन भी चौकन्ना और होशियार होकर बैठ चुका था, क्योंकि शाह फैसल मस्जिद की तरफ जाने वाले रोड पर पुलिस गाड़ियों की चेकिंग के बाद आगे जाने की परमिशन दे रही थी। सिक्योरिटी काफ़ी टाइट थी और मंसूर हुसैन की गाड़ी में असला था, लेकिन मंसूर हुसैन के लिए ठारी सी काफ़ी थी कि गाड़ी में रज्जो और लीज़ा बीबी भी हैं, क्योंकि लेडीज़ की मौजूदगी में गाड़ी की चेकिंग अलाउ नहीं थी। लीज़ा बीबी आप और रज्जो खिड़की के साथ होकर बैठे। मंसूर हुसैन ने ज़रा सी गर्दन तिरछी करके पीछे की तरफ देखा। क्यों? क्यों का सवाल उठाने वाला जौदत था। इस तरह गाड़ी की चेकिंग नहीं होगी, तो इसमें हमें डरने की क्या ज़रूरत है? गाड़ी की चेकिंग हो या ना हो, हम कौन सा असला गैर कानूनी सामान लेकर जा रहे हैं? जौहरत ने लापरवाही से कहा। वो तो ठीक है साहब, लेकिन ख्वाम खा ये लोग हमारा टाइम बर्बाद करेंगे। मंसूर हुसैन ने सर झटका।
इतने में एक पुलिस कांस्टेबल करीब आ चुका था, लेकिन गाड़ी में रज्जो और लीसे को देखकर गाड़ी को पास का सिग्नल दे दिया और इसके पीछे बाकी 3 गाड़ियों के साथ भी ऐसा ही किया। मंसूर हुसैन को जिस चीज़ का डर था वो इससे बच गया था। खरबकार फंदी ने ताकीद करके भेजा था किसी को पता नहीं चलना चाहिए वो असले से लोडेड है, और इसने ऐसा ही किया। लो जी जनाब, पहुंच गए हम शाह फैसल मस्जिद। जौरत ने मस्जिद की पार्किंग में पहुंचते नारा लगा। रफ्ता रफ्ता सभी अपनी गाड़ियों से उतरे। वाओ! जौरत ने एक लड़की को पास से गुजरते देखकर बेसाख्ता इज़हार किया। वाओ नहीं कहते जौरत भाई, सुबहान अल्लाह कहते हैं। अलीज़े ने मासूमियत से टोका। किसे देखकर? वो शाह से बोला। मस्जिद को देखकर। जौरत इसके जवाब पर कहकर लगा गया। तुम्हें किसने कहा कि मैंने मस्जिद को देख के वाओ कहा? तो फिर? अलीज़े हौंकसी से देख रही थी। मेरे वाओ का मरकज़ वो है, ब्लैक जीन्स और रेड टॉप वाली। जौरत ने इशारा किया और अलीज़े इस लड़की को देखकर सटपटा गई। इसकी पंडलियाँ और बाजू बरना थे। इसका जिस्म बेहद चुस्त था और वो अपनी किसी दोस्त से तस्वीरें बना रही थी। वहाँ मौजूद लड़कों का भी इसी तरफ ध्यान था। जौरत, तुम यहाँ खड़े क्या देख रहे हो? आज़ा ने करीब आते खपकी से पूछा। जो सभी देख रहे हैं, इसने कंधे उचकाए। बगारती थी वैसे जौरत का कोई सानी नहीं है। जौरत, आज़ा ने सख्ती से पुकारा, जिस पर जौरत घबरा के मतवज्जा हुआ। जी चले, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। वो सर झटकते हुए आगे बढ़ गया और अलीज़ा, नूशा और हुरमत वगैरह के ग्रुप में शामिल हो गई। इन सब लड़कियों ने सर पर दुपट्टे ओढ़ लिए। अलीज़ा ने तो अंदर आकर हैरान परेशान रह गई। जगह जगह लड़के लड़कियों के ग्रुप खड़े थे, हंस रहे थे, कहके लगा रहे थे, कुछ तस्वीरें बना रहे थे। यूँ लग रहा था जैसे वहाँ मौजूद लोग मस्जिद में नहीं किसी पार्क में खड़े। बेअदबी का तो किसी को ख्याल ही नहीं था। लड़कियाँ नंगे से घूम फिर रही थी, लड़के शरारतें कर रहे थे। इन्होंने मस्जिद के चिकने फर्श को रैंप समझ रखा था। उनकी यही समझ तो मुल्क में तबाही का बायस थी। अलीज़ा को सोचकर ही झुरझुरी सी आ गई। लोगों ने अल्लाह के घर को पिकनिक स्पॉट बना रखा है, जहाँ लोगों को ज़ियारत करने के लिए आना चाहिए, वहाँ लोग तफरी और सैर के लिए आ रहे हैं। आज़र भाई वापस चले? अलीज़ा से मज़ीद वहाँ का माहौल बर्दाश्त नहीं कर सकी। वापस? आज़र के साथ साथ बाकी सबको भी हैरत हुई। जी यहाँ बहुत रश है, मेरा दिल घबरा रहा है। अलीज़ा को वाकई यहाँ आकर उलझन हुई थी। तो तुम ऐसा करो, जाकर अपनी गाड़ी में बैठो, तो इतने में हम मस्जिद घूम फिर के देख लें। कोमल किसी के भी बोलने से पहले खुद बोल पड़ी। लेकिन आप लोग यहाँ क्या? हम लोग यहाँ इतनी दूर से मस्जिद देखने के लिए आए और देख कर ही जाएंगे। तुम्हारी तबीयत फ्रेश नहीं है, इसलिए तुम जाकर थोड़ी देर आराम करो, मूड फ्रेश हो जाएगा। कोमल ने बड़ी अपनाइत से वहाँ से हटाना चाहा और अलीज़ा थी सादा तबीयत फ़ौरन मान गई और अज्जो के साथ वापस पार्किंग में आ गई। लेकिन वहाँ का मंजर देखकर इसका दिमाग घूम गया। ड्राइवर? वो गुस्से से और ज़ोर से पुकारी। मंसूर हुसैन अपनी बेध्यानी में गाड़ी में बैठा सिगरेट पी रहा था जब अलीज़ा की आवाज़ पर बुरी तरह चौंक गया। ऑन ने तुम्हें गाड़ी में स्मोकिंग करने से मना किया था, लेकिन तुम फिर भी बाज नहीं आए। अलीज़ा ने आगे बढ़ के इसके दाएं हाथ की उंगलियों में दबा हुआ सिगरेट झपटा और दूर सड़क पर फेंक दिया। जबकि मंसूर हुसैन शबनम के पैकर में भड़कते हुए शोले को देखकर हैरान रह गया। कितनी जुर्रत, कितने गुस्से से इसने इसके हाथ से सिगरेट छीन कर दूर उछाल दिया था। हैरत की बात थी कि वैसी लगती तो नहीं थी, ऐसी लग रही थी। माफ़ी चाहता हूँ बिब्बी जी, याद नहीं रहा। मैं भी एयर फ्रेशनर ऑन करता हूँ। शट अप! गलती करके माफ़ी मांगने वाले लोग मुझे कतई अच्छे नहीं लगते। अलीज़ा का मस्जिद में मौजूद पब्लिक का गुस्सा मंसूर हुसैन पर निकल गया। मैंने जानबूझ के गलती नहीं की बिब्बी जी। मंसूर हुसैन का खुद झुका हुआ था। की तो है ना? वो गुस्से से भरी हुई थी। जिंदगी में शायद पहली बार इसने किसी पर गुस्सा किया था, वो भी मंसूर हुसैन पर। इसलिए तो माजरत भी करो। मंसूर हुसैन एयर फ्रेशनर ऑन करके गाड़ी से बाहर निकला। रज्जो, इसे कहो कि अपनी ज़ुबान बंद रखे, मुझे इस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अलीज़ा चिड़चिड़ी हो रही थी और मंसूर हुसैन इसके नर्म मुलायम नकोश पर गुस्से के छाप देख कर रह गया। वो जब से घर वापस आई थी मुसलसल अपने बेडरूम में बंद थी। इसने बेडरूम से बाहर निकलने की, किसी से बात करने की हरगिज़ कोशिश नहीं की। मुमताज़ हयात की मौजूदगी की वजह से सब पर ही गुस्सा था। मसला ये था कि गुस्सा इसके अंदर ही दबा हुआ था, गुबार की तरह बाहर नहीं निकला। शायद बाहर निकला आता तो शिद्दत ज़रा कम हो जाती, लेकिन फ़िलहाल तो गुस्सा निकालने का कोई रास्ता ही नहीं था। अपने कमरे में चकराते वो अच्छी खासी थक चुकी थी और अब तो इसे भूख का भी एहसास होने लगा था। वक्त रात के 1 बजे का वक्त था। कोई मुलाजिम अपने बेडरूम में खाना ला कर नहीं दे सकते थे, इसलिए अगर खाना ही था तो खुद जाकर वो वॉल क्लॉक की सिम देखती हुई चप्पल पहनकर बाहर निकल आए। बाहर पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। घर की तमाम फैंसी लाइट की बजाय नाइट बल्ब जल रहे थे, जिनकी मलजगी सी रोशनी में खामोशी से चलती हुई सीढ़ियों की सिमत पड़ रही थी। जब अचानक इसके कदम थम गए। दाएं साइड वाले बेडरूम की लाइट चल रही थी। लाइट चलने का मतलब था कि अंदर बैठा फर्द भी जल रहा है। मदिया चाहते हुए अपने कदम सीढ़ियों की सिमत नहीं बढ़ा सके, बल्कि उस बेडरूम की तरफ आगे जहाँ लाइट भी जल रही थी, लाइट जलाने वाला भी। इसने हाथ की मदद से दरवाजे पर ज़रा सा दबाव दिया और दरवाज़ा इसके हल्के से दबाव से खुलता चला गया। वो बेआवाज़ कदमों से चलती हुई अंदर आ गई। कमरे में सिगरेट के धुएं से हब्बस महसूस हो रहा था। मदिया ने हाथ से नादीदा धुएं को रफ़ा करने की कोशिश की और धीमे कदमों से जल्दी खिड़की के पास आ गई। खिड़की के पर्दे हटाकर खिड़की के दोनों पट खोल दिए। ताज़ा खुनक हवा का एक तेज़ झोंका अंदर आया और इस झोंके को ताजगी को महसूस करती पलट कर नबील के सामने आ खड़ी हुई, जो मुसलसल रॉकिंग चेयर पर झूल रहा था और आसपास की हर चीज़ से बेनियाज और लाताल्लुक़ नजर आता। भाई आई एम सॉरी, मदिया डायरेक्टली इसकी सिम देखते हुए कह रही थी, लेकिन नबील ने कोई नोटिस नहीं लिया। भाई मैं आपसे मुखातिब हूँ, मदिया ने ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा और नबील की रॉकिंग चेयर थम गई और फिर 5 सेकंड के तौक़ुफ़ के बाद इसने उंगलियों में दबा हुआ सिगरेट एशट्रे में मसल दिया। क्या बात है, क्यों आई हो? इसकी आवाज़ बेहद बोझल और भारी हो रही थी, लहजा बेगान के लिए हुआ था। आपसे सॉरी कहने आई हूँ। किस लिए? इसे हैरानी हुई। आप मेरी वजह से हर्ट हुए हैं?
یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہوا، عادی ہو چکا۔ نبیل تلخی اور استہزائی انداز میں کہتا چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتی لیکن ہو جاتا ہے، میری برداشت ختم ہو جاتی، میں خود پر کنٹرول نہیں کر پاتی۔ مدیہ جھنجھلا کے کہہ رہی تھی، تم نہیں جان سکتی مدیہ، تمہاری ایک برداشت ختم ہو جانے سے ہمارا کیا کیا ختم ہو جاتا ہے، عزت، غیرت، غرور، ہماری انا، سب کچھ ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ نبیل حیات کسی قابل نہیں رہتا اپنے آپ سے نظر ملانے کے۔ سگریٹ کا پیکٹ اٹھاتا ہوا نبیل یکدم چونک گیا۔ مدیہ رو رہی تھی؟ ناقابل یقین بات تھی، حیرت کا مقام تھا۔ مدیہ کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ نبیل سگریٹ کا پیکٹ وہیں چھوڑ کر فوراً اس کے سامنے آ گیا۔ میں بہت بری ہوں بھائی، بہت بری، میں نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے، لیکن میں کیا کروں، ہر بار کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا کہ… مدیہ کہتے کہتے اور بھی شدت سے روئی۔ نبیل نے اسے بے ساختہ اپنے بازو میں گھیرے کندھے سے لگا لیا۔ ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہوتا، تم بیٹھو ہیں۔ نبیل نے اس کا سر تھپکتے ہوئے کار سے صوفے پر بٹھایا، لیکن متواتر رو رہی تھی۔ دیکھو مدیہ، اس طرح جذباتی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ کرنے کے لیے دماغ کو ٹھنڈا اور دل کو وسیع رکھنا پڑتا ہے، ہمت، صبر اور برداشت سے کام لینا پڑتا ہے۔ تمہارے دل و دماغ میں جو کچھ ہے وہ تم مجھ سے شیئر بھی تو کر سکتی ہو، اور کچھ نہ صرف تمہارے دل کا بوجھ ہی ہلکا ہو جائے گا۔ پلیز مدیہ، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ اپنے اندر کا غبار نکالو، دل کا بوجھ کم کرو، اپنے آپ کو نکالو اس فرسٹریشن سے، پلیز۔ نبیل نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کے انہیں سلایا اور اس کا سر تھپکا، لیکن مدیہ کچھ بھی بتانے کی پھر شیئر کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، اس کے اندر کا غم و غصہ آنسو کے رستے باہر نکل رہا تھا۔ پھر نبیل نے کچھ سوچتے ہوئے اسے اپنے کندھے سے لگا کر رونے دیا تاکہ وہ کھل کر جتنا چاہتی رو لیتی، جس کے بعد اس کے دل و دماغ کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جاتا۔ لیکن نبیل یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل و دماغ کا بوجھ صرف رو لینے سے کم نہیں ہونے والا۔ اگر ایسا ہوتا تو اب تک نہ جانے کتنی بار رو چکی ہوتی۔ مدیہ، یہ لو پانی پیو۔ نبیل نے گلاس میں پانی ڈال کر گلاس اس کی سمت بڑھا دیا، اور مدیہ نے 2 گھونٹ پانی پینے کے بعد گلاس واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے، ایسی کیا چیز ہے جو تمہیں بے چین اور بے عقل رکھتی ہے؟ نبیل کافی تحمل اور سکون سے پوچھ رہا تھا۔ بھائی آپ جانتے ہیں نا بابا کا کردار کیسا ہے؟ مدیہ کا پوچھتے ہوئے سر جھکا ہوا تھا۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جس پر نبیل فوری طور پر ہاں یا نہ میں جواب نہیں دے سکا، کیونکہ دونوں صورتوں میں سے مدیہ سے نظر چرانی پڑتی۔ بتائیے نا بھائی، بس اعتراض پوچھ رہی تھی۔ اس نے محض ہوں کہنے پر اکتفا کیا۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ میری ایک دوست تھی، لو میری تھامسن۔ مدیہ کے دوسرے سوال پر نبیل ہوں کہنے کے بھی قابل نہیں رہا، کیونکہ اسے مدیہ کی اگلی بات بہت سمجھ آ گئی۔ لو میری میری دوست تھی، میری کلاس فیلو تھی، میری ہم عمر تھی۔ ہم لوگ اپنی ہالیڈیز منانے کے لیے انگلینڈ سے کینیڈا گئے تھے، وہاں لو میری کے ساتھ۔ مدیہ کہتے ہوئے ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ نبیل کی رنگت سفید لٹھے کی مانند ہو گئی تھی، اس کی سماعتوں میں سائیں سائیں کی آواز گونج رہی تھی۔ اپنے باپ کا نام نہاد مجسمہ دل کے بت خانے میں ایسے زور سے گرا کہ پاش پاش ہو گیا، اور مدیہ کے دل و دماغ کی اذیت نبیل کے جسم و جان میں صلاحیت کر گئی۔ بے شک مدیہ کی بات ابھی ادھوری تھی، لیکن اس کے مفہوم اور معنی بہت مکمل تھے۔ اس بات تو مدیہ کو بھی تسلی نہیں دے سکا۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ نبیل مٹی کے ڈھیر کی طرح بیٹھا رہ گیا، دل پر بوجھ سا آ گرا تھا۔ تو ہی انہوں کیا سی کہ میرے نہ گالی شیئر کرتے پھر گالی شیئر کرنے تو بعد ہی کچھ ہو رہا تھا۔ شاہ فیصل مسجد دیکھنے کے بعد ان لوگوں نے لوک ورثہ کا رخ کیا، جہاں اپنے کلچر کا ہر رنگ ہر تاثر دیکھنے کے لیے موجود تھا، اپنی ثقافت کا منہ بولتا ثبوت۔ خصوصاً وہ جگہ جہاں ایک عورت کنویں کے قریب جھکی کنویں سے پانی بھر رہی تھی۔ لڑکیاں اس منظر کو دیکھ کر بہت ایکسائٹڈ ہوئیں۔ بے شک وہاں تمام چیزیں آرٹیفیشل تھیں، لیکن ان کا تاثر بہت نیچرل تھا۔ وہاں کی بیل گاڑی، گھوڑا ٹانگا، اونٹ کے اسٹیچو اور میوزیم کے اندر ہر چیز ان لوگوں کے شوق و اشتیاق کو ابھارنے کے لیے کافی تھی۔ اور عورت نے ان کو ہر چیز کے متعلق بتا کر ان کی شوق اور بھی ہوا دے رکھی تھی۔ ان کو ساری جگہ گھومنے پھرنے کے بعد لوک ورثہ پسند آیا۔ لوک ورثہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں لیزا نے بھی بہت انجوائے کیا۔ وہ بھی سب کے ساتھ گھومنے پھرنے، تصویریں بنانے میں شامل رہی تھی، اور پھر شکر پڑیاں سے واپسی پر شام گہری ہو چکی تھی۔ سبھی یہ رات اسلام آباد میں رکنا چاہتے تھے، لیکن ناصر یہاں رکنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ مری پہنچنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے منصور حسین کو گاڑی مری روڈ کی طرف موڑنے کا سگنل دیا، اور اس نے سارے لاتے ہوئے حکم کی تعمیل کی۔ یار منصور حسین، میں تو بور ہو گیا، کوئی گانا ہی سنا دو۔ جورت نے بوریت کا اظہار کرتے ہوئے کیبنٹ میں رکھی سی ڈی الٹ پلٹ کر دیکھی تھی۔ مجھے گانا سننا آتا ہے صاحب، سنانا نہیں۔ منصور حسین کی نظر سامنے ونڈو اسکرین پر جمی ہوئی تھی۔ ہائے ہائے، ہنے فون ڈگن لگا سی میرا۔ بات وہ جورت سے کر رہا تھا، لیکن ذہن لیزے کے دوپہر والے غصے کی طرف تھا جو اس نے منصور حسین پر انڈیلا تھا۔ وہ ابھی تک حیران تھا کہ لیزے بی بی نے اس پہ اتنا غصہ کیسے ڈالا۔ حیرت کی یار، ایک تو تم بھی بہت نپے سے آدمی ہو، کھرا کھرا جواب دیتے ہو، بندے کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے۔ جورت نے منہ بنا کے کہا۔ منافقت سے کام نہیں لیتا صاحب۔ منصور حسین نے سپیڈ کم رکھتے ہوئے ساتھ والی گاڑی کو رستہ دیا۔ کیا اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسے پیش آتے ہو روکھے پھیکے سے؟ جورت کو حیرت ہو رہی تھی۔ بیوی نہیں ہے، اس نے نفی میں جواب دیا۔ ارے کیوں نہیں ہے؟ شادی نہیں ہوئی بھی؟ او اچھا، لیکن یار اب تک شادی ہو جانی چاہیے تھی، تمہاری یہی تو عمر ہے شادی کرنے کی۔ 29 کے تو ہو گئے نا، 29-30 کے تو ہو گئے نا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، لیکن منصور حسین کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئے۔ لیکن کیا یار کوئی محبت کا چکر ہے کیا؟
जौहरत मंसूर हुसैन में पूरी तरह से दिलचस्पी ले रहा था। मोहब्बत। मंसूर हुसैन ने मोहब्बत के नूरानी लफ्ज़ को ज़ेर लब दोहराया। दिल को यूँ लगा जैसे किसी ने हल्के से दबाया अपनी नर्म नाजुक हथेली में, फिर दूसरे पल इस नर्म नाजुक हथेली से आज़ाद कर दिया। मंसूर हुसैन ने अपने दिल को ठहराने के लिए दाएं बाएं देखा और गहरी नज़र की सांस खींची, लेकिन दोबारा विंडो स्क्रीन की सिम देखने से पहले इसकी नज़रें बैक व्यू मिरर पर जा ठहरी। अलीज़ा की गोल्डन ब्राउन आंखों का सहर बैक व्यू मिरर को अपने हिसार में लिए हुए था। यूँ लग रहा था जैसे वो भी ज़ोरत और इसकी बातें दिलचस्पी से सुन रही और इसे भी इसके जवाब का इंतज़ार हो। मंसूर हुसैन ने गाड़ी के अंदरूनी मध्यम और मलकी सी लाइट बुझा दी ताकि इसे पीछे का कोई भी मंजर दिखाई ना दे, जिसकी वजह से फिर इस पर कोई फर्द जुर्म आयद होती। अरे यार, लाइट क्यों बुझा रहे हो? मुझे मेरी बात का जवाब दो। जौहरत ने फिर लाइट जलानी चाहिए। रहने दे साहब, पीछे रज्जो सो रही है, इसकी नींद खराब होगी। इसने जौहरत को लाइट जलाने से मना किया। ओके, नहीं जलाता, लेकिन तुम जवाब तो दो, तुम मोहब्बत करते ना किसी से। जौहरत जानने के लिए बहुत बेचैन था। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि करती हूँ। जो लगता है वो होता नहीं है। मंसूर हुसैन ने सर झटका। नहीं मंसूर हुसैन, जो होता है वही लगता है। तो फिर ठीक है, आपको जो लगता है वही समझ लें। मेरे समझने की क्या ज़रूरत है? भला तुम्हें मोहब्बत है और बस है। जौहरत ने मंसूर हुसैन पर मोहब्बत की मोहर लगा दी। मंसूर हुसैन ना चाहते भी हल्के से मुस्कुरा दिया। इसे लाइट बचाने का ये भी एक फ़ायदा हुआ कि जौहरत इसकी मुस्कुराहट नहीं देख सका। भाई मरिया, और कितना दूर है? अलीज़ा का सफ़र जवाब दे चुका था। वो गाड़ी में बैठे बैठे थक चुकी थी। डोंट वरी, आधे घंटे का सफ़र रह गया। जौहरत ने इसे तसल्ली दी, म्यूज़िक प्लेयर ऑन कर दिया। वो तकरीबन 15-20 मिनट शावर के नीचे खड़े रहने के बाद नहाकर फ्रेश हुआ और तौले से बाल रगड़ता बाथरूम से निकला। इसकी पहली नज़र बेड की साइड टेबल की सिमत उठी, जहाँ दूध का गिलास और चाय का कप ढाँप के रखे हुए थे। गोया इसके नहाने के तुरंत मुलाजिम आकर रख गया था। इसने आगे बढ़कर चाय के कप पे का ढक्कन उठाया और चाय की भाप बेताबी से ऊपर की तरफ उठी। वो कप उठा के अपने रूम की खिड़की में आंख खड़ा हुआ। अवाइल नवंबर के दिन थे। सर्दी अपने पर रफ्ता रफ्ता पूरी कायनात पे फैला हुई थी। तो नवंबर दा अद्ध हो गया ने। ठंड इतने भी बड़ी है। माहौल में खुनक हवा मोर की तरह पंख फैला के नाच रही थी और इसके नाच का सरूर हर जीरू के अंदर रग रग में उतर रहा था। बिल्कुल ऐसे दिलावर शाह की रगों में उतर रहा था। वो रात के इस पहर नहाकर शर्ट पहने बगैर कंधों पर तौलिया डाले खिड़की में टेक लगाए खड़ा चाय से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। और इस लुत्फ़ और सरूर के मौसम में तसव्वुर जाना का सच जाना भी एक लाशऊरी अमल था, लेकिन इस अमल में भी कोई मुदाखलत कर बैठा। इसके सर पर वाइब्रेशन होने लगी। इसने अपने पैंट की जेब से सेल निकाल के देखा। नंबर अनजाना था। चंद सेकंड देखता रहा, फिर को बुलाकर कॉल अटेंड कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। इसके आवाज़ और लहजा काफ़ी संजीदा से थे। वालेकुम अस्सलाम, आप कौन बात कर रहे हैं? दूसरी तरफ से काफ़ी घबराई हुई नस्वानी आवाज़ आई। दिलावर शाह स्पीकिंग। इसने इस नस्वानी आवाज़ को यकीन दिलाया। मैं मोमिना बीबी बात कर रही हूँ सर। जब मैंने इसने भी अपना तारुफ करवाया तो दिलावर चंद साने के लिए खामोश हो गया, लेकिन इस खामोशी में इसका पहला ख्याल सिर्फ इस तरफ किया कि वो रात के इस पैर क्यों फ़ोन करिए। जी कहिए बीबी, आपने रात के इस पैर फ़ोन क्यों किया? आप ठीक तो है ना? दिलावर को कितना तशवीश हुई। सर इस वक्त तक तो ठीक हूँ, लेकिन आइंदा के लिए कोई भरोसा नहीं। इस खबीस को पता चल गया कि मैं इस पर केस करी, इसलिए इसने अपने बंदों को मेरे पीछे लगा दिया। 3 दिन से चिपती फिर रही हूँ। अब तो मुझे कोई भी अपने घर में दाखिल नहीं होने देता। मैं वो किसी भी वक्त मुझे कत्ल करवा सकते हैं। लेकिन सर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के दरख्वास्त करती हूँ कि मैं मर भी जाऊँ तो भी आप इसके अंजाम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। मोमना बीबी रूहान से लहजे में कहते हुए रो पड़ी। इसकी आवाज़ हाँपी हुई थी और लहजा धीमा और दबा दबा सा लग रहा था। ये लग रहा था जैसे वो चोरी छुप के फ़ोन कर रही हूँ। ये कैसी बातें करिए आप? कुछ नहीं होगा आपको, आप हौसला रखें। नहीं सर, ऐसा मुमकिन नहीं। इसके बंदे कुत्तों की तरह मेरी बू सूंघते फिरे ने। जहाँ भी मेरी खबर मिल गई मुझे गोली मार देंगे। वो रोते हुए मुश्किल अपनी बात मुकम्मल कर पाए। दिलावर के ज़हन ने हमेशा की तरह फौरी काम किया। मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ नहीं होगा आपको, आप बस इतना बता दें कि आप इस वक्त कहाँ हैं। इसने कुछ सोचते हुए इस्तफसार किया। मैं वो बताने से मैं ज़रा हिचकिचा गई। मोमना बीबी, मुसीबत और मुश्किल के वक्त अल्लाह के पास बंदे आदमी को अपने डॉक्टर और अपने वकील पर भरोसा रखना ही पड़ता है। वो सब बताना पड़ता है जो हमने ज़िंदगी में सबसे छुपा के रखा होता है, क्योंकि इसके बगैर कोई चारा नहीं रहता। बीमारी बताए बगैर डॉक्टर ज़िंदगी और मौत की जंग नहीं लड़ सकता, और जाज बताए बगैर वकील इंसाफ और हार जीत की जंग नहीं लड़ सकता। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है, अपनी ज़िंदगी बचानी है फिर इस खबीस के हाथों कत्ल होना है। दिलावर के लहजे संजीदगी के साथ साथ सख्त हो गया। मम्मी भी इसकी बात सुनकर लाजवाब और शर्मिंदा होगी। सर मैं इस वक्त काड़ा में हूँ। यहाँ मेरी एक सहेली रहती है, इसकी यहाँ शादी हुई है, लेकिन अब तो 2 रोज़ से इसके ससुराल वाले भी बातें करने लगे। मुझे डर है कि ये लोग मेरी खबर मेरे गांव में ना पहुंचा दें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप इत्मीनान रखें, सुबह होने से पहले पहले आप महफूज आदमी में पहुंच जाएंगी। दिलावर ने तसल्ली दी। लेकिन सर, आप बाकी बातें किसी और वक्त के लिए रहने दें। फिलहाल मुझे इस जगह का एड्रेस लिखवा दें जहाँ आप रह रही हैं। आपको थोड़ी देर तक पिक कर लिया जाएगा। दिलावर की तसल्ली और हौसले पर मोमिना बीबी बेयकीन सी हो गई थी। इसे यकीन ना कि इतना बड़ा वकील इसके केस में इस हद तक इन्वॉल्व हो रहा है, वो भी बगैर किसी फीस और मुआवजे के। ये आप क्या कह रहे हैं सर? देखिए बीबी, मैंने आपसे कहा कि इस वक्त कोई और सवाल जवाब मत करें। दिलावर ने खफकीसी से टोक दिया। मोमना बीबी ने जल्दी जल्दी से एड्रेस लिखवा दिया। माफ़ी चाहती हूँ सर, थोड़ी देर के लिए दिल में बदगुमानी आ गई थी, कहीं वो आप तक ना पहुँच जाए। वो नदामत और शर्मसारी से कह रही थी। वो मुझ तक नहीं पहुँचेगा, बल्कि मैं इस तक पहुँचूंगा। और माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, अपनी ज़िंदगी हर एक को अजीज़ होती है।
ہر انسان اپنی زندگی محفوظ ہی رکھنا چاہتا ہے. آپ کی جگہ کوئی بھی تو یقیناً ایسے ہی سوچتا ہے. اینی وے آپ فون بند کریں, تھوڑی دیر تک آپ کو کال آ جائے گی کہ آپ کو کون پک کرنے آ رہا ہے. آپ کا شکریہ سر, بہت شکریہ. مومنہ بی بی نے فون بند کر دیا اور دلاور نے گہری سانس کھینچتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑے سرد چائے کے پانی کپ کو دیکھا. پاپ اڑاتی چائے برف ہو چکی تھی اور برف تو اس کا جسم بھی ہو چکا تھا, لیکن بچت یہ تھی کہ اس کے جسم میں دوڑتا لہو بہت گرم تھا اور باہر کی سردی ذرا کم ہی محسوس ہونے دیتا تھا. اس وقت بھی سردی سے بے نیاز چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ کے پلٹا, کھڑکی بند کی, اپنی شرٹ پہنی اور تولیہ صوفے پر پھینکا. بال برش کیا, پھر اس دوران سوچتے ہوئے کسی حد میں فیصلے پر پہنچ کر اپنا سیل فون دوبارہ اٹھا لیا. حالانکہ نمبر ڈائل کرتے ہوئے اسے پتہ تھا کہ وہ کسی کو نیند سے ڈسٹرب کر رہا ہے, لیکن اس کے بغیر کچھ حل بھی نہیں تھا. ہیرا انسپکٹر شہناز اسپیکنگ. دوسری طرف سے نیند سے بوجھل آواز سنائی دی. اس نے یقیناً اس کا نمبر نہیں دیکھا تھا. السلام علیکم, دلاور شاہ بات کر رہا ہوں. دلاور نے کافی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا, ارے شاہ جی آپ اس وقت؟ انسپکٹر شہناز کی نیند جیسے ہوا ہو گئی. اس یوں لگا جیسے وہ بستر سے اٹھ کے بیٹھ گئی. شرمندہ ہوں آپ کو نیند سے ڈسٹرب کر دیا. دلاور کا لہجہ معذرت خواہ تھا. ارے نہیں شاہ جی, ایسی کوئی بات نہیں, آپ سو بسم اللہ کر کے ڈسٹرب کرو, ہم غریبوں کے تو ماتھے پر شکن تک نہیں آئے گی. انسپکٹر شہناز کی خوشی اس کے لب و لہجے سے محسوس ہو رہی تھی. آپ کہاں اس وقت؟ دلاور کو سمجھ نہیں آتا ویسے گہری نیند سے جگا کر لاہور سے اکھاڑے جانے کے لیے کیسے گئے. جدہ گہری نیند سے جگا رہتا تو بھی کہہ دے. ایسی کیا بات ہوگی, آخر آج میرے شاہ جی کچھ پریشان لگتے ہیں. انسپکٹر شہناز اس کی سنجیدگی سے اس کی پریشانی پھام کی تھی. وہ دراصل میں نے آپ کو کسی کام کے لیے فون کیا تھا. دلاور نے بات شروع کی. جانتی ہوں شاہ جی آپ نے کسی کام کے لیے فون کیا, ورنہ ہمارے ایسے نصیب کا کہ آپ کو ہماری یاد ہے. ہمارا فون کھڑکایا تو آپ کی مجبوری. خیر اللہ بھلا کرے اس مجبوری کا جس نے آپ کو ہمیں فون کرنے پر مجبور تو کیا. انسپکٹر شہناز نے شکر ادا کیا. آہو تیرے ہستے وہ ہو گیا, چنگی گل ہو گئی تھی. وہ جڑی اتھے لک کے بیٹھی مردی پئی. آپ جانتی ہیں انسپکٹر شہناز, میرا پروفیشن مجھے کسی کو یاد کرنے کے بھی ٹائم نہیں دیتا. میرے دوستوں کو مجھ سے شکوے ہونے لگتے ہیں. جانے دیجیے شاہ جی, آپ بہانہ کرتے اور صفائی دیتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. حالانکہ میرا کام ہی یہی ہے. وہ ہنستے ہوئے مسکرایا. ارے کون کہتا ہے کہ آپ صفائی دیتے ہیں؟ میں نے تو ہمیشہ آپ کو جج کے سامنے شعلے اگلتے ہوئے اور گرجتے برستے سنا. اس نے حیرانی سے کہا. میں کورٹ کی حد تک, دلاور نے نارمل سے انداز میں کہا. بس کورٹ کی حد تک؟ ہرگز نہیں, آپ کورٹ سے باہر بھی ویسے ہیں, روکھے پھیکے اور سڑیل سے. مجالہ جو کبھی آنکھ پھر کے بھی دیکھا ہو کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی بھی کام کرتی ہے, جو آتے جاتے بڑی آس سے دیکھتی ہے کہ شاید دلاور شاہی سے لائن ہی مار دے. اوئے ہوئے, بہت دکھی ہے بھائی کڑی. انسپکٹر شہناز جل کے بولی اور دلاور کا فلک شگاف کہہ کر بہت دور تک پہنچا. لائن تو ماری دوں لیکن میڈم آزاد پنچھی ہوں, حوالات سے ڈرتا ہوں. آپ لوگ اندر کرتے ہوئے دیر نہیں لگاتے. وہ دلچسپی سے بولا. شاہ جی آپ ایک بار لائن تو مارو, آپ کو اپنے دل کے اندر کریں گی, حوالات کے اندر نہیں. حوالات کے اندر کرنے کے لیے اور جو ہے. انسپکٹر شہناز نے اسے آفر کی. سوری میڈم, قید چاہے دل کی ہو یا حوالات کی, میرا تو دم گھٹتا ہے, میں تو کسی کے دل میں بھی نہیں رہ سکتا. دلاور نے ہنستے ہوئے کہا. اچھا, کسی کے دل میں رہ نہیں سکتے لیکن کسی کو دل میں رکھ تو سکتے ہیں نا. یہ کام بھی کافی مشکل ہے. وہ شرارت سے بولا. انسپکٹر شہناز اس کی چلاکی پر مسکرا اٹھی. آپ بندہ گھما دیتے ہو, بات گھمانا کون سا مشکل کام ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, میں نے آپ کو اس وقت آپ کو گھمانے کے لیے فون کیا. اوکے فرمائیے پھر. وہ پوری طرح متوجہ تھی. آپ کو اس وقت اکاڑا جانا ہوگا. اکاڑا؟ اس وقت؟ اسے چھمبا ہوا. جی میں نے کسی عام سے خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی کو فون نہیں کیا, بلکہ ایک لیڈی پولیس آفیسر کو فون کیا, جس کے لیے اس وقت اور اس وقت کوئی معنی نہیں رکھتے. یہ کسی کی موت اور زندگی کا سوال ہے, آپ کو پہنچنا ضروری ہے. دلاور نے زور دے کر کہا. لیکن شاہ جی آپ جا رہی ہیں یا نہیں؟ وہ دو ٹوک پوچھ رہا تھا. جا رہی ہوں, اس نے اس بات میں جواب دیا. ٹھیک ہے, آپ نکلنے کی تیاری کریں, میں تھوڑی دیر بعد دوبارہ کال کرتا ہوں. اس نے کہہ کے فون بند کر دیا اور مومنہ بی بی کو بتا دیا کہ انسپکٹر شہناز اسے لینے کے لیے آ رہی ہے. کل رات مری پہنچتے اس نے تھکن کے مارے کچھ ہوش نہیں رہا. اگلا سین شروع ہو گیا کہ وہ کہاں نہیں. نیند اور دن بھر کی تھکن کی وجہ سے انہیں کھانا کھانا بھی یاد نہیں رہا. بس انہیں بستر کی طلب تھی کہ جیسے انہیں بیڈ روم نظر آئے وہ دیوانہ وار لپکے. البتہ آزا نے اپنی نگرانی میں سب کا سامان نکلوا کے ان کے کمرے میں بھجوا. گیٹ بند کروایا تب بھی اپنے کمرے میں بیڈ روم میں گیا. سب سے پہلے بستر پر ڈھیر ہونے والی لیزے تھی. عائشہ پندی سے دیکھنے کے لیے آئی تو وہ سو رہی تھی, اس لیے انہوں نے رجو کو اس کے کمرے میں بھیج دیا. منصور حسین کو بھی اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنے کے لیے کہا. ہر طرف سے مطمئن ہونے کے بعد خود بھی اپنے کمرے میں آ گئی. وہ لوگ تقریباً رات کے 12 بجے سوئے تھے. اس وقت صبح کے 12 بجے کا وقت ہے, لیکن ابھی تک ان میں سے کوئی ایک بھی بیدار نہیں ہوا, کیونکہ باہر صبح سے بارش اور برف باری ہو رہی تھی. اور پہلی نظر دیکھنے پر یہ احساس ہو رہا تھا کہ ابھی رات ہے. ماحول میں پھیلا ملچ کا سا اندھیرا اور غبار شام کا سما پیش کر رہے تھے. منصور حسین چائے پیو گے؟ رجو کچن کی طرف جا رہی تھی جب مین ڈور کے بیچوں بیچ کھڑے منصور حسین کو دیکھ کر ٹھہر کی. ہاں بنا دو, منصور حسین دھیمے سے بولا. رجو سر ہلائی تھی, فوراً پلٹ کی. پھر وہ چائے لے کر آئی تو اس کے پاس ہی بیٹھ کر خود ادھر ادھر کی بدو کی باتیں کرنے لگی. رجو لیزے رجو کو پکارتی اپنے بیڈ روم برآمد ہوئی. جی لیزے بی بی. رجو منصور حسین کو وہیں چھوڑ کے بھاگی چلی گئی. اتنا ٹائم ہو گیا, تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ لیزے نے اپنے گرد گرد شال لپیٹتے کافی سستی سے بولی. جو جاگے تھے بی بی جی, ایسا موسم دیکھ کر پھر بھی سو گئے, اس لیے میں آپ کو بھلا کیا جگاتی.
वो सामने कौन बैठा है? मंसूर हुसैन। रज्जो ने मुस्कुरा कर बताया, मंसूर हुसैन? अलीज़ा ने दोबारा कहा। देखा क्योंकि मंसूर हुसैन ने अपने इर्द गिर्द चादर लपेट रखी थी और बाएं हाथ में पकड़े कप से चाय पी रहा था। कॉरिडोर की सिमत इसकी पुश थी, इसलिए इस दूर से पहचाना मुश्किल हो रहा था। नाश्ता बनाऊँ आपके लिए? बनाओ, वो इसे कहकर बर्फबारी देखने के शौक में खुद भी बाहर निकल आए। सलाम बीबी। मंसूर हुसैन इसे देखकर खड़ा हो गया। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? अंदर आ जाओ। अंदर जाओ। इसने से वहाँ से जाने का इशारा किया। जी बेहतर। वो सर झुका कर पलट गया और लीज़ा ने खुद वहाँ पड़े से सतून के पास खड़ी होकर बर्फबारी देखने लगी, जिसके चेहरे पर ऐसे कुदरती मंजर को देख खुशी और इश्तियाक के रंग बिखरे हुए थे। अच्छा जी, मेरी नींद वाली आवाज़ महसूस हो ना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मैं आज सुबह जल्दी उठी हुई और अभी 3 बजने वाले रात के, मैं सुबह 10 बजे की जाग रही हूँ। नींद से हाशिर होना शुरू हुआ बड़ा, थोड़ी सी नींद पूरा कर लो। गुड मॉर्निंग बेबी। दानियाल इसके करीब ही आन खड़ा हुआ था। सेम टू यू भाई। वो इसे देखकर खुश दिली से मुस्कुराई। रात कैसी गुजरी? कुछ पता नहीं। क्या मतलब कि नींद में कुछ खबर नहीं होनी थी, मैं तो फ़ौरन ही सो गई। ऐसी कोई बात नहीं जनाब, हम भी फ़ौरन ही सो गए थे, अलबत्ता कुछ ख्वाबों ने बहुत सताए रखा। बात करते करते दानियाल का ट्रैक बदल के लीज़ा ने चौंक कर देखा। वो करीब आती हुर्मत को देखकर कह रहा था। हालांकि इसका अंदाज़ काफ़ी गैर महसूस किस्म का था, लेकिन हुर्मत महसूस कर चुकी थी। इसके चेहरे पर शर्म का गुलाबी अक्स लहरा रहा था। किसके ख्वाबों ने? लीज़ा ने जानबूझ के छेड़ा। बता दिया तो खफा होगी, और ना बताया तो मैं खफा हो जाऊँगी। अरे मेरी जान, तुम्हारा क्या छोटी सी चिड़िया हो, जब चाहे पकड़ कर मना लो। लीज़ा ने दानियाल ने लीज़ा के कंधे पर बाजू फैलाते हुए कहा। हुर्मत आप ही दानियाल भाई आपको चिड़िया कह रहे हैं, कहते हैं जब चाहे पकड़ लो। लीज़ा ने शरारत से कहा तो दानियाल घबरा गया। लीज़ा मैंने ऐसा कब कहा? अभी अभी तो कहा है। यार मैंने तुम्हें तो कहा है। वो झंझला गया। मैं जानती हूँ आपने मुझे कहा। लीज़ा सरगोशी में बोली। हुर्मत इसकी बुलंद सरगोशी सुनते हुए एकदम खिलखिला के हंसी। दानियाल ने लीज़ा से नज़र बचाकर हुर्मत की हंसी को अपनी नज़रों में समेटा। ओ तो तुम शरारती होगी हो। बस कल से होगी, वरना परसों तक तो ठीक थी। लीज़ा का मूड काफ़ी खुशगवार हो रहा था और इसके मूड की खुशगवारियत तो पूरा दिन यूं ही तारी रही। रफ्ता रफ्ता सब नींद से बेदार हो चुके थे। ऐसा शानदार मौसम देखकर बाहर निकलने के लिए मचल गए थे। आयशा बंदी तो काफ़ी रोका, लेकिन इन सबका कहना था भैया हम घूमने फिरने एंजॉय करने और अंदर बैठने नहीं। अलबत्ता आयशा बंदी ने कहीं भी जाने से इनकार कर दिया। एक तो वो कल से थकी हुई थी, दूसरा बाहर ठंड बहुत ज़्यादा थी। तबीयत खराबी की वजह से वो इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए अपने टैबलेट लेकर कमरे में आकर लेट गई। और इन लोगों का 4 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला एक बार फिर रवानगी के अमल में था। आज हुर्मत और मदद ने कोमल को अपनी गाड़ी में खींच लिया और इसे फ्रंट सीट पर आज़िज़ के बराबर बैठने का मौका फराहम किया, क्योंकि जौलत आज फिर लीज़ा की गाड़ी में मंसूर हुसैन के साथ इंजॉय कर रहा था। वो जब अपने बंगले से निकले तब दिन के 3 बजे का वक्त था, और 3 बजे के टाइम कब शाम 8 बजे में तब्दील हुआ, इन लोगों को एहसास ही न हुआ। एहसास तो इस वक्त हुआ जब जौलत ने इन लोगों को फ़िल्म देखने का आइडिया दिया। 9 से 12 का शो यार। जौलत ने अहमद हुसैन के कंधे पर हाथ मार कर। लेकिन लड़कियाँ? अहमद जज्बा हो गया। फिल्म अच्छी हुई तो देख लेंगे, ना हुई तो वापस चलेंगे। इसने शान उचकाया। ये ठीक है चलो। जैन इनसे पहले आगे बढ़ के, लेकिन आज़िज़ फिल्म देखने के लिए तैयार नहीं था, मगर सब लड़के लड़कियों को तैयार देखकर वो ज़्यादा देर इनकार नहीं कर सका। मगर लीज़ा थकी हुई थी, इसने वापस बंगले पर जाने का इरादा कर लिया। लेकिन लीज़ा तुम? आज़ा को खफकी हुई। आई एम सॉरी भाई, मैं कल से भी थकी हुई, मुसलसल 3 घंटे बैठने की हिम्मत नहीं है। मैं आराम करना चाहती हूँ, सोना चाहती हूँ, बहुत नींद आ रही है। अलीज़ा को फिल्म देखने से कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए बेहतर तक वो घर जाकर आराम कर रही थी। इसके चेहरे पर भी थकन के आसार वाज़ेह थे। आज़ा से मज़ीद इसरार करके ज़बरदस्ती नहीं रोक सकता था। ओके जाओ तुम आराम करो। आज़ा ने इसका रुखसार थपके का और वो मुस्कुराती हुई पलट आई थी। रज्जो और मंसूर हुसैन गाड़ी में इसका इंतज़ार कर रहे थे। इसके बैठते मंसूर हुसैन ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो इसे रास्ते में थे जब इसके मोबाइल पर आज़ा की कॉल आ गई। हमारे आने तक तुम सोना मत, लीज़ा के लिए ख्याल रखना इसका। पप्पो तो खाना खाकर सो गई, मैंने अभी कॉल किया मगर इन्हें रिसीव नहीं की इन्होंने। आज़ा ने इसे तकीद की। जी साहब, जैसे आपका हुक्म। आपको तो सारी रात नहीं सोऊंगा। मंसूर हुसैन ने ताबेदारी से कहा। गुड, बाद में मिलते हैं। आज़ा ने कह के फ़ोन बंद कर दिया और इतने में मंसूर हुसैन ने बंगले के सामने ब्रेक लगाया। चौकीदार ने गेट खोल दिया। वह एक झटके से गाड़ी अंदर ले गया। मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ बीबी जी। रज्जो गाड़ी से उतरते हुए किचन की तरफ बढ़ी। नहीं रहने दो, मैं सोने जा रही हूँ। अली से शाल संभालती हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। रज्जो अपने कमरे की तरफ चली गई, जबकि मंसूर हुसैन वहीं खड़ा रह गया, क्योंकि इसे जागने का हुक्म मिला था और इसने इस हुक्म की तामील करनी थी। वहीं से तो उनके पास खड़ा सिगरेट फूंकने लगा। बाहर की सर्दी और अंदर की सोच दोनों अपने अरूज पर थी। वो कहीं से कहीं पहुंचा हुआ था। मंसूर हुसैन तुम सोई नहीं अभी तक? रज्जो ने अचानक कहाँ से नमदार हुई। नहीं, आज़ा साहब ने जागने के लिए कहा। ओ अच्छा, पहरा दे रहे हो? मैं भी दूँ? रज्जो शरारत से बोली। नहीं, तुम जाओ, जाकर सो जाओ। इसने इसे अपने साथ जागने से मना कर दिया। लेकिन मैंने कहा ना जाकर सो जाओ। मंसूर हुसैन ने सख्ती से मना किया तो वो फ़ौरन पलट गई और वो खुद भी अपने कमरे की तरफ आ गया। मोबाइल को चार्जिंग पर लगाकर वो दोबारा गर्म चादर ओढ़े बाहर आकर टहलने लगा। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारा आज की किस्त इख्तिताम को पहुँची। मेरा नींद से हशर ख़राब हुआ पड़ा, मैं मज़ीद नहीं रिकॉर्ड कर सकती, तो मुझे इजाज़त है।
کمنٹ سیشن میں انشاءاللہ کل ہی ریڈ کریں گے. میرا نا دماغ ابھی نیند سے ہوا پڑا. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.